Hi, this is Saket Saurav, co-founder and CEO for Refit Global. India is a large market for pre owned or used products. There are multiple unicorns operating in the space of pre owned cars, for example. Another large category in the pre owned space is mobile phones. And in this episode of the Founder Thesis podcast, we go deep into this category as your host, Akshay Tat, talks to the founder of one of the largest players in the pre owned mobile phones market. Saket Saurav is the founder of Refit Global, and he has had a remarkable journey of scaling up the pre owned phone startup with zero external funding. Refit Global is looking to end this year with a top line of more than 300 crores. They still have headroom to grow massively from there. This episode is a masterclass in business fundamentals and how to build a large business without external funding. Stay tuned for this amazing conversation and subscribe to the Founder Thesis podcast on any audio streaming app. Can you just describe what is Refit Global? If you were giving an About elevator the, pitch, so at Refit Global, what we do is we buy exchange devices from online portals and from brands. We get the old devices to our warehouse. We refurbish the device to the best possible extent. We try to make it as good as new. We have, offline presence, which is spread across pan India, and we sell those devices to our offline channel partners. okay. And how big is the business? So as of now, last year we clocked around 200 CR. Amazing. And what's your target for this year? We are targeting 350 to 375 CR. That is the bare Amazing. So let's kind of start with the journey of getting here. Like, you built a business which will soon be a 350 CR business with zero external funding. I would love to hear that story of how you built this. How did the idea come to you? What made you want to become an entrepreneur? Basically, both me and Avneet, old friends, after post graduation, we started working with LG Electronics and Videocom. After corporate exposure of almost 9+ years, while during our stint at ShopClues, we were managing the refurbished portfolio itself. And during the tenure at ShopClues, we decided to start this refit and with refurbished category. What made you want to leave LG and join ShopClues? The growth trajectory we got was the opportunity what we were getting was fantastic. And since during that time everything was moving to online thing, e-commerce, there was a boom, the kind of hike in terms of money and in terms of profile, and obviously the exposure which you get working with any new setup company, which is particularly e-commerce. So to get that exposure in terms of profile as well as in terms of money, we decided to join ShopClues. And during our stint at ShopClues, first we are given large appliances category. You were like a category manager. Correct. Okay. When we are taking care of large appliances category, obviously, company wanted to start with some new category in which company could make some money. So under the new initiative program, they wanted us to start with some category जिसमें company का कुछ पैसा बने. So after doing, appliances में ज़्यादा नहीं बनता क्या margin? appliances, because वो cost intensive model होता है ना, because of the logistics issue. Okay, तो वो logistics and logistics में installation. लॉजिस्टिक्स इंस्टॉलेशन की वजह से वो इतना ज्यादा कॉस्ट इंटेंसिव हो जाता है कि वहां पे प्राइस प्रॉफिट बनाना इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. Okay. तो ऑब्वियसली उस समय वो था कि कुछ ऐसा नया कैटेगरी शुरू करा जाए जहाँ पे कुछ कंपनी पैसा बना ले. आफ्टर आवर रिसर्च एंड आफ्टर आवर वेरियस मार्केट विजिट्स, वी हर्ड ऑफ दिस रिफर्बिश इंडस्ट्री कमिंग अप रियली वेल इन इंडिया. When we did further research, we came to know that refurbished ka bahar mein, US mein, and other countries, market is quite big. Then we thought of starting this cat. Then we put this idea to the management. Our management agreed, and we finally decided to launch this refurbished category in ShopClues. ShopClues mein category from 0 to 40-45 CR in 7 to 8 months time with EBITDA positive category. So Wow. bilkul, it was a cash cow for the company, for any of the online companies. What was the margin like? Refurbished. रिफर्बिश में मार्जिन आप एबिटा लेवल पे अगर बात करूं तो 1.5 से 2% का एबिटा लेवल पे मार्जिन. Okay. And gross margin ग्रॉस like प्रॉफिट
Gross margin wise, 5.5 varies from 5.5 to 7.58%. Okay. Shopclues was not inventory-led model. No? They were essentially pure Yes, marketplace. yes, they were a pure marketplace. So because of that only we got that exposure क्योंकि हमारे को Shopclues being a marketplace, हमारे को सिर्फ selling के लिए we could have used the other platform which is Shopclues Hmm. platform. Inventory source हमारे को करना था Flipkart से. अब इन्वेंट्री सोर्स शॉपक्लूज डायरेक्ट कर नहीं सकता. वो इन्वेंट्री सोर्स करने के लिए हमारे को वो इन्वेंट्री होल्ड करवाना होता था टू दैट थर्ड पार्टनर, जिसको हम ऑन बिहाफ ऑफ शॉपक्लूज ही यूज्ड टू प्रोक्योर द इन्वेंट्री फ्रॉम फ्लिपकार्ट. फिर Okay. उस जो पार्टनर होता था उस पार्टनर को हम उसको अश्योरेंस देते थे दैट व्हाटएवर इन्वेंट्री यू आर सोर्सिंग ऑन बिहाफ ऑफ अस, दैट एंटायर इन्वेंट्री विल सेल इट. और हम फिर हमारे को चैलेंज ये भी होता था. सो द मार्जिन व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ये हमारा अपना कंपनी शॉपक्लूज का मार्जिन होता था, बिकॉज हमारे को कुछ मार्जिन जो है जो थर्ड पार्टी होता था जो हमारे Sellers बिहाफ पे को. सोर्स करता था उसको भी Right. देना होता था. Right. तो Okay. उसी की वजह से वो चैनल का एक्सपोजर हमारे को रिफर्बिश का धीरे धीरे जैसे जैसे करते गए और हमारे को आइडिया जो है वो अच्छा और आइडिया हमारे को होता गया. And We started इसमें looking. it was just a trading business or was there some value addition being done? No, in Shopclose it was just a trading business that we used to get Okay. the inventory and we used to sell it. Okay. रिफर्बिश के लिए हमारे को कुछ कुछ जो है वो करना होता था. कुछ रिफर्बिश इन्वेंट्री, हम जो इन्वेंट्री आती थी उसी को हम ग्रेड वाइज में डिफाइन करते थे. जो अच्छे ग्रेड्स वाली इन्वेंट्री होते थे वी यूज टू सेल इट शॉपक्लूज प्लेटफॉर्म पे, और बाकी के जो ग्रेड्स वाली इन्वेंट्री होती थी उसके लिए हमने अलग से ऑफलाइन चैनल हमने बनाया हुआ था फॉर शॉपक्लूज, जिसपे हम वो वाली Okay. इन्वेंट्री लिक्विडेट करते थे. तो द एंटायर थिंग वाज मैनेज्ड. वो हम पूरा मैनेज कर रहे थे. तो वहां पे मैनेज करते करते हमारे को हमारे जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है he was moving ahead from Shopclose. Then that time only it triggered that since he was moving और एक पूरा सेटअप वो बन चुका था, we were also very much comfortable with him. Was So this during the time after like Sandeep quit and there were a lot of senior management exits and all yeah, that? after that, this was in the year 2017. Okay. Okay. मतलब the decline had very much started by that Correct. time. Yes, the decline had Okay. started. तो उसी टाइम पे we are also getting थोड़ा सा हम भी नर्वस हो रहे थे कि what if he goes, तो उसके बाद में कैटेगरी का क्या रहता है, कैसे रहता है, क्या स्ट्रक्चर रहेगा. तो when we had a discussion with him, he only हमारे को उन्होंने वो बोला था if you are building this end to end thing for the company, और तुम लोगों का prior experience has also been channel experience रहा है और यहाँ पे जब build कर रहे हो, then why don't you start of thinking this business on your own. अपना ब्रांड बनाओ, अपनी कंपनी बनाओ और शुरू करो. तो ऑब्वियसली हम खानदान में किसी ने बिजनेस कर नहीं रखा है. हमारे को बिजनेस का भी नहीं पता होता था. मतलब What kind of family do you come from? Like, सो आई कम फ्रॉम अ काइस्ट फैमिली, जहाँ पे लोगों का दूर दूर तक नाता सिर्फ पढ़ाई लिखाई से ही होता है. और okay. 99.99% लोग सिर्फ सर्विस करते हैं. Okay. उनको या तो या IAS, IPS, IT या डॉक्टरी And वो था. your father was also in like a government job or something. या ही वाज इनटू बैंक. So he was a Okay. chief manager in the Allahabad bank. तो पूरी फैमिली जो है वो सर्विस बैकग्राउंड वाली फैमिली रही. Right. तो ऑब्वियसली हमारे को वो था कि यार हमने करा और व्हाट इफ वी डोंट सक्सीड, नहीं कर पाए अगर तो, और हमारे पास में उतना ना तो कैपिटल है ना उतना सेविंग्स है, देन ऑब्वियसली उन्होंने एक हमारे को कंफर्ट फैक्टर वो दे दिया था कि अगर इफ यू फेल, व्हिच आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट यू विल से थ्रू एंड यू गाइस विल डू वेरी गुड, बट इफ यू फेल तो जहाँ पे भी मैं रहूंगा वहां पे यू विल हैव अ जॉब. एंड सिंस यू हैव दैट चैनल सेल्स का एक्सपीरियंस, सेल्स वालों को मतलब नौकरियों की कमी नहीं होती, जहाँ पे छोड़ो वहां से तो शुरू कर ही लो. तो True. हमने True. भी वो सोचा कि चलो ठीक है, लेट्स गिव इट अ ट्राई. एक बार ट्राई करने में, और वो पैशन था ही शुरुआत से कि काम अपना करना है कुछ. बट चूंकि कैपिटल नहीं होता तो, और वो जब सोचते थे इतना पैसा लगाना है, तो कभी उतना उस करके हमने दिमाग लगाई नहीं कि कि इतना पैसा लगा के अपना काम शुरू करें. बट वहां से जब वो एक आया तो दैट वाज अ ट्रिगर पॉइंट फॉर मी एंड अवनी. वी थॉट चलो ठीक है, लेट्स गिव इट अ ट्राई. तो 2017 हमने वी स्टार्टेड रीफिट, एंड फाइनली इन द ईयर 2000 तो कंपनी में हमने शॉपक्लूज में रहते हुए कुछ टाइम हमने काम करा फॉर रीफिट आल्सो एंड फॉर द कंपनी आल्सो. इन द ईयर 2018 वी गॉट रिलीज्ड. हमारा 2018 में हमारा नोटिस पीरियड हमने सर्व खत्म कर दिया. उसके बाद से 2018 से हमने 100% इनटू रीफिट ओनली. इनिशियली जब हमने शुरू करा था, वी स्टार्टेड विथ 15 लाख का पर्सनल लोन लिया. 30 लाख वो थे, 7-8 लाख हमारे पास में, जो 8-9 साल के करियर में जो एक सर्विस बैकग्राउंड के पास वाले के पास में होता है, जो सेविंग्स थी हमने सारी चीजें झोंक दी कि चलो ठीक है, इधर वील मेक और ब्रेक. फॉर्चुनेटली वी आर एबल टू मेक समथिंग
and it paid off really well. But yes, obviously शुरुआत में initial 2-3 years, 3.5 years, it was very challenging for us. मतलब we have seen days जहाँ पे हम we used to रात रात भर 2-2 3-3 रात हो जाता था कि हम वो ट्रैवल ही कर रहे होते थे. हमने शुरुआत में टाइम ऐसा भी था कि we used to take 200-300 डिवाइस हम अपनी गाड़ियों में रख करके, और हम छोटे-छोटे पार्टनर्स के पास में, वेंडर्स के पास में यूज्ड टू लुक फॉर देम, क्योंकि वो चैनल द इंडस्ट्री वाज नॉट एट ऑल वेरी मच स्कैटर्ड. लाइक यू बिल्कुल यू भी वर यू वर क्लियर कि आपको ऑनलाइन नहीं बेचना, क्योंकि शॉपक्लूज में तो आप ऑनलाइन बेच रहे थे. हाँ, क्योंकि यू हमारे डिडंट को वो वांट था टू. कि हाँ, नहीं, द रीज़न बीइंग क्योंकि हमारे को ये चीज़ अच्छे से क्लियरली पता था, ऑनलाइन करने के लिए हमारे को पैसा चाहिए, मार्केटिंग ओके, करना होगा. राइट. ऑन जो हमारे पास में था नहीं, वर्किंग कैपिटल बट लिमिटेड था. यू अब कुड वो हैव 50, लिस्टेड मार्केट प्लेस में एज अ सेलर. बट लेकिन वहां पे क्या है ना, वही मैं बता रहा हूँ, वो जो सिंस वी हैव बीन पार्ट ऑफ दैट, तो वी नो द पिक्चर इज नॉट दैट रोजी. वो उतना अच्छा, दूर का दूर वाला जो है ना, वो उसमें पिक्चर देखता है कि हमने 1000 का खरीदा और 2000 का बेच दिया, तो मैंने 100% का मार्जिन कमाया. बट एक्चुअल में कंपनी का कमीशन, कैटेगरी कमीशन, रिटर्न, लॉजिक. लॉजिस्टिक्स, वो सारा करते हुए ना, वो आपको लगता है कि नहीं ठीक है, ऑफलाइन इज बेटर. और प्लस हमारा वी न्यू सिंस डे वन कि हमारा मैक्सिमम एक्सपीरियंस जो वो चैनल का रहा है. तो और जो हमने शॉपक्लूज में भी करा था, वो बहुत सारे पार्टनर्स ऐसे थे जिनको हम लोगों ने हमारे ट्रस्ट के बेसिस पे हमने उनको शुरू कराया काम कि चलो ठीक है, यू स्टार्ट विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 15 lakhs और 20 lakhs. एक बारी करके देखो, इफ यू एबल टू, अगर आपको लगेगा पैसे बना रहे हो, कंटिन्यू करना, नहीं करोगे आप एग्जिट कर लें. हम दूसरे पार्टनर के साथ में करें. फॉर्चुनेटली ओके. उन्होंने भी पैसा बनाया. तो जिन्होंने 15 लाख का इन्वेस्टमेंट करा था, वो बढ़ा करके 25 पे करा, 30 पे करा. एडवांटेज हमारे साथ में शॉपक्लूज में रहते हुए वही हुआ कि फॉर द रिफर्बिश्ड कैटेगरी वी वर द फेस ऑफ द कंपनी. तो व्हाटएवर बिजनेस वाज हैपनिंग ऑन शॉपक्लूज, जो शॉपक्लूज में जो भी चल रहा था, उसका इंटायर थिंग वाज मैनेज्ड बाय मी एंड अवनी. तो सारे लोग हमारे ट्रस्ट और हमारे फेस वैल्यू के बेसिस पे काम कर रहे थे, जो कि एंड दीस हमारे वर को जब व्हाट काइंड ऑफ पीपल जो शॉपक्लूज में जो सेलर्स थे. जो लार्ज अप्लायंसेस करते थे, जो ऑडियो कैटेगरी ओके, करते थे, जो मतलब इनकी कहीं पे जिनका अप्लायंसेस या रीफर्ब इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप इनका होगी. रीफर्ब हाँ, वैसे वाले लोग थे, या तो वो एग्जिस्टिंग ओके. डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, बट लेकिन ना, रीफर्बिश से इन लोगों का दूर-दूर तक कोई नाता नहीं था. इनको And you किसी को नहीं पता था got them रिफर्बिश कैटेगरी. into the category. So, तो so इनको वो your कैटेगरी initial में plan वो was that you will source through Flipkart only. That was the plan. जो शॉपक्लूज में आप फ्लिपकार्ट के यस. थ्रू सोर्स कर रहे थे. हाँ, ओके. तो शॉपक्लूज में भी ओके. वही था कि फॉर ऑल्सो जो भी हम नंबर्स कर रहे थे शॉपक्लूज के लिए, उनको भी वो था, वी हैड क्वाइट गुड रिलेशंस विद देम. उस राइट. टाइम पे भी जो है वो लिक्विडेशन के लिए कोई बड़ा पार्टनर्स वो लोग भी देख रहे होते थे कि कोई आए और उसको स्ट्रक्चर्ड तरीके से, बिकॉज इंडस्ट्री वाज नॉट एट ऑल स्ट्रक्चर्ड. विचार रहा था कि देयर शुड बी सम प्लेयर जो आए और इस इन्वेंटरी का लिक्विडेशन स्ट्रक्चर्ड तरीके से हो, कि उनको भी एक हर एक मंथ ऑन मंथ जो है वो एमओक्यू पे हम बात करें, इतनी क्वांटिटी, सोर्सिंग कैसे होनी चाहिए, अच्छे अच्छे इनपुट्स दे, फीडबैक्स दे. तो वहां पे हमारा, चूंकि वी वर रिप्रेजेंटिंग शॉपक्लूज, तो वहाँ फ्लिपकार्ट में भी हमारा वी आर हैविंग क्वाइट गुड रिलेशंस विद आवर सोर्सिंग पार्टनर्स एज वेल. जिसका एडवांटेज हमारे को व्हेन वी लेफ्ट शॉपक्लूज, जब हमने अपना शुरू करा, ऑब्वियसली हमारे को उस चीज का एडवांटेज फ्लिपकार्ट में भी मिला, क्योंकि एंड जितने लोग फ्लिपकार्ट बाकी 100% इन्वेंट्री आपको दे रहा था, या you were one of many partners that they were giving व्हेन inventory इन to? सो इन शॉपक्लूज ऑल्सो बिकॉज इनफ्लो बहुत ज्यादा था, तो शॉपक्लूज में रहते हुए भी हम 30%, 35% ही कंट्रीब्यूट कर पाते थे एट मैक्स, मतलब Okay. बेस्ट केस. Okay. और जब Okay. रीफिट Okay. शुरू करा था, तो फर्स्ट ईयर हमारे पास में कैपिटल ही इतना लिमिटेड था. उस कैपिटल को ही हमारे को रोटेट करना था. तो फर्स्ट ईयर तो हमने चैनल बिल्डिंग, शुरुआत के 2 साल तो हमने सिर्फ चैनल बिल्डिंग पे ही फोकस करा कि दिस चैनल इज ओनली गोइंग टू गिव अस रिटर्न्स. ये अगर हमने बिल्ड कर लिया, तो आने वाला टाइम पे हमारे को यहीं से हम पैसे बना, यहीं से हमारे को देयर देयर ओनली वे गोइंग. What you were doing was essentially से आप सोर्स करके and then you would supply it further to your channel partners, and these channel partners were either distributors or retailers. करेक्ट. तो हम से सोर्स करते थे. इनिशियली डे वन से हमारा आइडिया ये था कि हम सिर्फ ट्रेडिंग नहीं करेंगे, हम इन्वेंट्री लेंगे, उस इन्वेंट्री को हम रिफर्बिश करेंगे, जो प्रॉब्लम होगा उसको हम रेक्टिफाई करेंगे, रिपेयर करेंगे, और फिर हम उसको चैनल में बेचेंगे. क्योंकि हमारा वैल्यू एडिशन अगर जब तक नहीं रहता उस इन्वेंट्री पे, एनी टॉम डिक एंड हैरी वुड हैव कम और हमारे को एक दिन में एलिमिनेट कर देता, आधा परसेंट प्राइस कट करके. बट वो जो Okay. वैल्यू एडिशन हम कर रहे थे विद रिफर्बिशिंग दैट इन्वेंट्री, और हमारे को उसका रिफर्बिशमेंट का पहला प्रायर एक्सपीरियंस भी था, हम कर चुके थे. चैनल जब हम बना रहे, वी वर वेरी क्लियर कि हमारे को चैनल डेप्थ में घुस करके बनाना है, कि जहां पे सिर्फ ओके कैटेगरी इन्वेंट्री जिनको चाहिए, वी कुड हैव गिवन ओनली ओके कैटेगरी इन्वेंट्री. आज के डेट में हमारे पास चैनल ऐसा है कि जहां पे सिर्फ जो ब्रोकन फोन्स भी है, वो फोन भी हमारे पास लिक्विडेट करने के लिए भी है पार्टनर, जो कि सिर्फ ब्रोकन फोन्स है.
वी वो हैव चैनल। बेसिकली पार्ट्स यूज करते हैं फोन से फिर दे। हाँ, फोन्स का फिर वो पार्ट यूज करते हैं। वी हैव ओके। चैनल जो कि एस्थेटिकली फोन बिल्कुल स्क्रैची हैंडसेट रहेगा बट फंक्शनली ओके रहेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड्स के हिसाब से हमने वेरियस मिक्स एंड मैच वाला चैनल बना रखा है, व्हिच इज आवर कोर स्ट्रेंथ एज ऑफ नाउ। हमारे को वो लगता है कि हमारा कोर स्ट्रेंथ है। हम आज के डेट में व्हाटएवर इन्वेंटरी वी सोर्स in that particular month, उसका 95% इन्वेंटरी वी लिक्विडेट इन दैट सेम पर्टिकुलर मंथ। अगर मैंने मई वाओ। महीने में अगर कोई इन्वेंटरी अगर सोर्स करा है, तो हम वही सेम इन्वेंटरी को मई में ही हम क्लोज कर लेते हैं। वेयर एज अदर आर कॉम्पिटिटर्स, उनके साथ में यहाँ पे ये बहुत बड़ा चैलेंज है इस बिजनेस का, कि अगर आपने महीने में 50,000 क्वांटिटी सब सोर्स करा है, उस 50,000 में से 35-40,000 क्वांटिटी बेचना इज नो टफ टास्क। आराम से बिक जाएगा वो 35,000, मार्केट में उतना डिमांड है। बट द मेन हर्डल और मेन चैलेंज लाइज जो बैलेंस का 15,000, 10,000 जो क्वांटिटी बच रहा है, उसको आप बाकी के 35,000 के साथ में कैसे मिक्स एंड मैच करके बेच रहे हो? क्योंकि अगर आपने उसको अच्छा। सही तरीके से मिक्स एंड मैच नहीं करा, तो वो 15,000 की वैल्यू आपके बुक्स में तो दिखेगी कि इट इज मेरे बुक्स में 5 करोड़ का स्टॉक्स आई एम कैरिंग, बट जब आप उसको नेक्स्ट मंथ लिक्विडेट करने जाओगे, तो उसका लिक्विडेशन प्राइस वुड बी 3.5 सीआर और 4 सीआर। तो आपको वो 1 महीने तक रोज़ी पिक्चर दिख रहा होगा, बट तब 1.5 महीने के बाद में आपको लगेगा यार व्हाटएवर मनी मैंने जो बनाया था, उससे ज़्यादा मैंने ऑलमोस्ट डबल मैंने एक बार में रब ऑफ कर दिया। तो तो वो व्हाई इज चीज़, दैट? तो नेक्स्ट मंथ उसका लिक्विडेशन पे यू टेक अ लॉस, इज इट क्योंकि क्या बिकॉज होता है, वो सिलेक्शन बायस है कि जो अच्छा माल था वो बिक गया सिर्फ? हाँ, बिकॉज़ देखो कोई भी इंडस्ट्री में या कोई भी इंडस्ट्री, अगर आप लो, हर एक इंडस्ट्री में फास्ट मूविंग और स्लो मूविंग मार्केट्स होते हैं। उसी तरीके से मोबाइल्स में भी है। लाइक हमारे आईफोन पास वुड में बी क्लोज़, फास्ट मूविंग। हाँ, वी डील इन मोर देन 500 प्लस मॉडल्स। अब उस 500 में से 150 मॉडल ऐसे हैं जो फास्ट मूविंग मॉडल हैं। 150 मॉडल ऐसे हैं जो आर एवरेज, मतलब ठीक-ठाक है। बहुत ज़्यादा डिमांड भी नहीं है, बहुत कम डिमांड। बाकी के 150-200 फ़ोन ऐसे व्हिच आर स्लो मूविंग, जो व्हाट्स पुराने एन फ़ोन हो गए। एग्जांपल ऑफ स्लो? अच्छा, लाइक फीचर फोन या कोई अननोन फील नहीं ब्रांड हो फील या? हम तो हमारा जो इन्वेंटरी आता है उसमें हम तो वी डील 100% इन स्मार्टफ़ोन्स ओनली। तो ओके। फॉर एग्जांपल सैमसंग J2 हो गया, व्हिच इज़ वेरी ओल्ड मॉडल। लेनोवो के फ़ोन हो गया। आई वुड कम एंड ऑफर यू राइट। अ लेनोवो फ़ोन, ठीक हाँ, है? लेनोवो जिसका ने तो प्राइस ढाई, मार्केट आप भी तो एग्जिट लेना ही कर नहीं लिया। चाहो, हाँ, हाँ, राइट। तो हाँ। लेना नहीं। तो दोज़ आर उस तरीके से स्लो मूविंग, एवरेज मूविंग और फास्ट मूविंग। तो ओके। चैलेंज वही होता है। मैं अगर एज़ अ पार्टनर मैं आपको 5,000 क्वांटिटी का शीट दूँगा, आपको बोलूँगा इसमें से आप मेरे को 2,500 का ऑर्डर बना दो। आप तो अपने हिसाब से फास्ट मूविंग का मॉडल जिसमें आपको लगेगा ये तुरंत निकल भी जाएगा, मैं आई विल बी एबल टू सेल इट इन द मार्केट वेरी फास्ट एंड आई विल बी एबल टू मेक गुड मार्जिन्स आल्सो ऑन दीस फोन्स। यू विल जस्ट टेक हार्डली 15-20 और हाफ एन आवर टू मेक द ऑर्डर। बट बाकी का जो बैलेंस जो आप 50% छोड़ोगे, दैट उसको मेरे को अनदर नया फास्ट मूविंग मॉडल्स का लॉट प्रोक्योर करना होगा टू सेल दैट बैलेंस स्लो मूविंग मॉडल, व्हिच इज़ अ वेरी टफ टास्क। क्योंकि कहीं जहाँ से भी आपका सोर्सिंग है, वो सोर्स जहाँ से आप सोर्स भी कर रहे हो, वो भी आपको ऐसा नहीं कि आपको यू जस्ट गो एंड पिक एंड चूज़ योर मॉडल्स। वी आल्सो गेट द राइट। इन्वेंटरी इन लॉट्स, व्हिच इज़ अ मिक्स ऑफ फास्ट, स्लो एंड एवरेज मूविंग मॉडल्स। हाँ, हाँ, तो बिकॉज़ वो बहुत फ्लिपकार्ट बड़ा डज़न्ट वांट चैलेंज दैट हेडेक ऑफ है। यस, यस, यस। सेग्रीगेटिंग। दे वांट अ करेक्ट। बल्क बायर। हाँ, हाँ, ओके। हुँ। एब्सोल्युटली। अब इसमें वो होता है कि कॉम्पिटिटर्स के साथ में वो मतलब दे आर ओनली व्हाट वी फील इज़, वहाँ पे वो लोग थोड़ा-सा मिस्टेक हो जाता है कि वो शॉर्ट टर्म मनी देख रहे होते हैं, कि ठीक है चलो मेरे पास में, सो देयर आर एवरी ईयर देयर आर 2-3 पार्टनर्स हू विल कम इन दिस इंडस्ट्री एंड आफ्टर ईयर्स, और साल, डेढ़ साल, 2 साल के बाद में वो इंडस्ट्री एग्ज़िट कर लेते हैं बिकॉज़ ऑफ दिस सेम रीज़न। आते हैं शुरुआत के 6 महीने तो लगता है कि यार दिस बिज़नेस इज़ फैंटास्टिक, वंडरफुल। मेरे पास इन्वेंटरी आने के पहले ही मैं 70% इन्वेंटरी की बुकिंग ले लेता हूँ। मैं 7-8% मार्जिन भी बना लेता हूँ और मेरे बुक्स में इतनी वैल्यू की इन्वेंटरी अभी बची हुई भी है। तो मेरा तो बिज़नेस जो है इट इज़ आई एम डूइंग अ वंडरफुल जॉब। बट आफ्टर This द बाय द you're एंड saying ऑफ that 1 ईयर, companies like you, like companies which are doing similar to what you are doing, उनकी बात हाँ, कर रहे हो आप कंपनीज़ या विच आप? ओके, ठीक है। हुँ। नहीं, हम अपने मतलब कॉम्पिटिटर्स या जो नए लोग आते हैं राइट। और फिर वो साल हाँ, भर के हाँ, बाद में हाँ, एग्ज़िट मार लेते हैं। तो साल हाँ, भर के बाद में उनको फिर वही लगता है दैट जब वो अपनी पूरी बुक्स टैली करते हैं कि ठीक है पूरे साल भर में मैंने 50 करोड़ का काम करा, उस 50 करोड़ में से मैंने 5% मार्जिन बनाया और आज के डेट में मेरे पास बुक्स में 15 करोड़ का स्टॉक, बट बिकॉज़ ऑफ द वेरियस कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ द इन्वेंटरी व्हिच ही इज़ कैरिंग, be it in terms of quality, be it in terms of grade, be it model mix, and be it the pricing, because pricing also keeps on changing. Mobile is a very diverse, very fast moving market. वहाँ पे नया हाँ, मॉडल लॉन्च होता है,
पुराने हाँ, फ़ोन का प्राइस जो है प्राइस चेंज हो जाता है। तो जब राइट। उसको एक्चुअल लिक्विडेट करने के लिए वो चाहते हैं, दैट 15 सीआर इन्वेंटरी एक्चुअल उनको रिटर्न जो है वो आ रहा होता है 10 सीआर, रियलाइजेशन प्राइस इज़ 10 सीआर और 11 सीआर, 2 सीआर। एक बार में 4 करोड़ का जब बुक्स में जब लॉस बुक करते हैं, तो उनको साल भर की अपनी जो कमाई दिखती है, उससे ज़्यादा वो लॉस बुक करते हैं। तो लगता है नो बॉस, दिस बिज़नेस इज़ नॉट वर्थ। बट आवर थिंग इज़ कि हम वी वर्क ऑन ज़ीरो डेट स्टॉक मॉडल। हम वी चूँकि हमने अपना चैनल इस तरीके से बनाया है, व्हाटएवर इन्वेंटरी जिस तरीके की भी इन्वेंटरी हमारे पास में आती है, रिफर्बिश करने के बाद में व्हाटएवर परसेंटेज ऑफ इन्वेंटरी व्हिच आर बिकॉज़ ऑफ द कॉस्ट इफेक्टिवनेस कि हमने कॉल लिया कि इस इन्वेंटरी को हम रिफर्बिश नहीं करेंगे या बिकॉज़ ऑफ स्पेयर पार्ट्स अनअवेलेबिलिटी या कुछ बीईआर इन्वेंटरी भी वी स्पेशली प्रोक्योर बीईआर इन्वेंटरी व्हिच इज़ योर बियॉन्ड इकोनॉमिक रिपेयर जो बियॉन्ड कि इकोनॉमिक रिपेयर, ओके, या व्हिच इज़ फॉर स्पेयर पार्ट्स ब्रांड्स बेसिकली देन। या तो ब्रांड्स ने ओके, बोल दिया कि ये इन्वेंटरी रिपेयरेबल है ही नहीं, तो वो दे हाँ, लिक्विडेट इट एज़ जिसको बीईआर। हिंदी में हम कंडम माल बोलते हैं। हाँ, 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 बिल्कुल। तो राइट, वो वाली इन्वेंटरी भी वी आर वन ऑफ द फ्यू वेंडर्स पैन इंडिया जो हम बीईआर इन्वेंटरी सोर्स करते हैं। एंड ऑफ दैट बीईआर इन्वेंटरी वी आर एबल टू रिफर्बिश ऑलमोस्ट 40-45% ऑफ दैट उस बीईआर में से। ओके, एंड ओके, देन जो बैलेंस इन्वेंटरी बचता है उसका वी कैनिबलाइज़ द स्पेयर पार्ट्स टू यूज़ अदर डिवाइसेस 100% फुल्ली फंक्शनल। एट लास्ट जो हमारे पास फाइनल बच जाता है, जिसका कि हमने पूरा सारा जूस निकाल चुके होते हैं, दोस क्वांटिटी को उस इन्वेंटरी को भी लिक्विडेट करने के लिए भी वी हैव पार्टनर्स जो आते हैं, वो सिर्फ फ़ोन का बॉडी और मदरबोर्ड और वो सारी चीज़ें जो हैं, दे वुड बाय इट फ्रॉम अस। आवर स्ट्रेंथ हैज़ बीन राइट सिंस डे वन। हमने जब काम शुरू करा था, वी वर वेरी श्योर कि हम ऑफलाइन चैनल हमारा स्ट्रेंथ रहा है। तो पहले चूँकि हमारे पास ज़्यादा पैसे है नहीं, हमारा माइंड वी आर वेरी क्लियर सिंस डे वन पैसे जला करके काम नहीं करना है हमारे को। हमने जो काम अपना व्हाटएवर पास्ट एक्सपीरियंस हमारा जो भी रहा है चैनल सेल्स का, उसमें हम ये चीज़ वी आर अ फर्म बिलीवर दैट वी आर नॉट एडिंग एनी वैल्यू ऑफ द सेल्स व्हाटएवर यू आर डूइंग। अगर मेरा सोर्सिंग प्राइस ₹100 है और मैं उसको अगर जाकर के ₹90 में बेच दूँ, आई एम नॉट एडिंग एनी वैल्यू। मेरी कोई ज़रूरत ही नहीं है। एनी पर्सन कैन कम एंड डू दिस जॉब। 100 का सामान को 90 में बेचना। योर एक्चुअल वैल्यू लाइज़ जब आप 100 का सामान लेकर के अगर आप उसको 105 या 110 में if you sell it, then actually you are मेकिंग वैल्यू। आप अपना वैल्यू एडिशन तब कर रहे हो। तो वी आर वेरी क्लियर सिंस डे वन कि वी विल नॉट टेक एनी हेज़ी कॉल्स, जहाँ पे हमारे को लग रहा है कि हाँ, आगे में ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ चैनल, इन टर्म्स ऑफ हार्ड वर्क हमने बहुत करा है, रिस्क भी हमने लिए मतलब I यस want बाय to गॉड्स ग्रेस। zoom into something you said previously. You said that your competitors are able to do maybe 60%, 70% liquidation same month, which you are able to do 95% because. So is that because you are creating bundles and then selling those bundles together to the buyer? मतलब आपके जो buyers हैं, जो जिन distributors and retailers को आप supply करते हो, तो वो choose नहीं करते products, आप उनको एक bundle बना के दे देते हो? Is that why you are able to manage it, or is it because आपके पास हर type of product के लिए आपने कोई buyer ढूंढ दिया है? हाँ, तो इसमें देयर आर मेजरली बिकॉज़ ऑफ 3 रीज़न्स। नंबर 1, वी डोंट गिव आवर बायर्स दैट ऑप्शन ऑफ चूजिंग द इन्वेंटरी। सो वी हैव Okay, 3 कैटेगरी। ऑफलाइन हमने 3 कैटेगरी में बाँटा हुआ है। One is our distributors, number 2 is wholesalers, and number 3 is B2R channel, B2R small retailers. So we ठीक है. to any of the 3 channel, हम उनको we don't give them option of choosing the inventory from the lot. If a distributor को अगर 1000 यूनिट देना है, we make the lot basis our grade, model mix, brand contribution। वो उसके हमने अपना एक एक्सेल शीट हमारा एल्गो के साथ में वो बना हुआ है। वी जस्ट फीड द इन्वेंटरी बेसिस हमारी जो हमने उन पे कमांड्स दे रखे हैं उसके बेसिस पे हमारे को वो शीट का फॉर्मेट निकल करके आ जाता है डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी द पार्टनर वांट्स। उसके बेसिस पे हम उनको वी डोंट गिव देम टू चूज द इन्वेंटरी। नंबर 2, अगर हम कभी किसी को पिक एंड चूज़ का मॉडल अगर हमारे पास में वैसी कोई इन्वेंटरी ऐसी भी है जहाँ पे हमारे पास में कुछ सो सिंस वी हैव द रिफर्बिशमेंट कैपेबिलिटी आल्सो, तो इट बिकम्स ऑल द मोर ईज़ियर कि अगर कुछ खराब इन्वेंटरी अगर बच भी गई, तो एक मिनिमल कॉस्ट लगा करके हम उसको रिपेयर करके एज़ गुड एज़ न्यू बना लेते हैं। ताकि मेरा जो एडिशनल प्राइस जितना हम पैसा खर्च कर रहे हो, इफ आई एम स्पेंडिंग 5% ऑन दैट पर्टिकुलर डिवाइस, तो मैं 10% एडिशनल प्रीमियम पे बेच देता हूँ। Okay. And this you're saying, so someone like your competitor, like say Cashify is one of your competitors. So Cashify would be telling retailers that you e-commerce experience, that you see my inventory and you select what you want to buy, which is why उनकी inventory बच जाती है.
हाँ, तो उनके पास में भी जो दैट सेम थिंग, वो प्रॉब्लम जो हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट सेम प्रॉब्लम दे आर आल्सो फेसिंग। जो हाँ, वो सिलेक्शन जो बायस मतलब जो सिलेक्शन, हाँ, या सिलेक्शन ओके। करके देने से वो क्या होता है कि स्लो मूविंग मॉडल्स, और स्लो मूविंग मॉडल्स के साथ-साथ में जिस प्राइस पे वो इन्वेंटरी सोर्स हुई हुई होती है, वो प्राइस जो है वो इट इज़ डेप्रिशिएटिंग डे बाय डे, हर एक हफ्ते उसका प्राइस जो है वो गिर रहा होता है। But तो my question here is, why would some guy who's procuring 1,000 units, why would he come to you? वो सीधा कैशिफाई जाके अपने अपनी चॉइस की इन्वेंट्री वहां से क्यों नहीं खरीदेगा? आपके पास क्यों आएगा वो? बिकॉज़ हाउ हम डिड जो यू उसको प्राइस, कन्विंस? हम हमारा सोर्सिंग इज़ ब्रांड्स एंड ऑनलाइन पार्टनर्स, हम वहाँ से सोर्स करते हैं। हम्म, सोर्सिंग में वी डोंट स्पेंड अ सिंगल पेनी, हमारा कोई कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट नहीं है, हमारा कोई मार्केटिंग कॉस्ट नहीं है। द ओनली कॉस्ट इन सोर्सिंग व्हिच इज़ इन्वॉल्व्ड इज़ लॉजिस्टिक्स, व्हिच इज़ लेस देन हाफ अ परसेंट। हाँ, मेरे बिकॉज को आप इन्वेंटरी सोर इन बल्क पिकअप कर रहे हो, आपको बल्क अलग पिकअप अलग। कर रहा हूँ, मेरे हाँ, को कोई मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं है, मैं कोई कस्टमर एक्विजिशन पे नहीं दे रहा हूँ कॉस्ट। हम्म, व्हेयरएज़ आवर कॉम्पिटिटर, वो इन्वेंटरी को कस्टमर को अपने प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट दे रहे हैं। हम्म, लॉजिस्टिक्स उनका इतना कॉस्ट इंटेंसिव है कि वो डिवाइस को पिक करने के लिए जाना, फिर उसको लेकर के आना, वेयरहाउसिंग में डिफरेंट डिफरेंट, जस्ट इमेजिन पैन इंडिया लोकेशन पे आपको सेंट्रलाइज्ड हब्स बना, क्योंकि हम्म, आप तो पैन इंडिया पिकअप कर रहे हो। तो उनका वो कॉस्ट इंटेंसिव इतना ज़्यादा हो जाता है कि मेरा सोर्स करा हुआ प्राइस मॉडल 5000, दैट सेम पर्टिकुलर मॉडल वहाँ पे 10% का वेरिएंस तो वहीं आ जाता है। ये जो 10% ओके, का वेरिएंस है, मैं उसको यूज़ करता हूँ अपने चैनल को बिल्ड करने। हम अपने चैनल को स्कीम्स हम इस तरीके से चलाते हैं कि वो हमारे साथ में 1-1 क्वार्टर, 6-6 महीना, ईयरली वो हमारे साथ में जुड़ करके रहते हैं। नंबर 2 इज़ द व्हाट इज रेपुटेशन एन एंड द एग्जांपल ऑफ अ ट्रस्ट। स्कीम दैट यू रन फॉर लॉयल्टी? फॉर लॉयल्टी, फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कि 1 क्वार्टर में इफ ही विल डू 25,000 क्वांटिटी or 15,000 quantity, he'll get an additional slab scheme of 2%, additional scheme of 2%. या फिर we give them some, two times that, 3 What is days this and 5 days. 2%? 2% 2% means of what? the total 2% of the total turnover he does with us. So for example, 25,000 quantity contributes to 10 CR of business. So he'll get 20 lakh rupees additional credit notes. Inventory. 20 lakhs additional margin he'll get on the business he does. So ऐसा So कुछ नहीं है कि your distributors are bound to follow your pricing. मतलब you have set the pricing for your yes, channel. अच्छा. this is the price, then our channel is aware about it कि ये प्राइस जो है वो Okay. शीट जब आता है तो वो ऐसा नहीं होता है कि ये मॉडल का प्राइस ज्यादा है कम है, उनको पता है ये प्राइस है और इसी प्राइस पे ऑपरेट हो रहा है। समटाइम्स वी टेक दैट कॉल डिपेंडिंग ऑन द हमारा नहीं सोर्सिंग तो प्राइस वो अभी। एंड कंज्यूमर को आपका प्राइस दिखाते हैं वो, मतलब दे सेल इट एट द प्राइस यू आर नहीं नहीं डिक्टेटिंग नहीं टू देम। नहीं एंड कंज्यूमर को प्राइस वो दिखाते, वो तो अपना प्राइस दिखाते हैं ना एंड कंज्यूमर। अच्छा, ओके, ओके, तो वो प्राइसिंग पावर इज डिस्ट्रीब्यूटर अपना, देयर्स ओनली। ये हाँ, हमारे दिस इज हम अपने चैनल तक में प्राइसिंग कंट्रोल हमारे पास में, एक बार इन्वेंटरी उनके पास चली जाती है, तो जो B2R चैनल है, वहाँ पे हम प्राइसिंग उस तरीके से रखते हैं, जहाँ पे कस्टमर ऑफरिंग जो है वो कॉम्पिटिटिव रहे, ताकि हमारा वहाँ पे कन्वर्जन जो है वो बेटर हो। बट फॉर होलसेलर एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, वो एक बार इन्वेंटरी अगर उनके पास में चली गई, तो प्राइसिंग कंट्रोल वो उनके पास में चला जाता है। वो भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाते, क्योंकि उनको भी मार्केट में कॉम्पीट करना है। राइट। ओके, And ओके, number ओके। two reason, they are not bound to work with us because of the credibility, trust, reputation, और इसमें से जो चैनल whatever we have built, इसमें से 40-45% पार्टनर्स ऐसे हैं जो कि हम लोगों के फेस वैल्यू पे या हमारे कहने पे उन्होंने ये बिजनेस शुरू करा है। तो दे जस्ट ट्रस्ट अस, उनको उनसे अगर आप पूछो, उनको शायद इस बिजनेस के बारे में एबीसीडी भी आज के डेट में भी पता नहीं। That's the second, and what's the third? You said three reasons why they come to you. हाँ, एंड नंबर 3 इज़ कि हम जो है इन टर्म्स ऑफ सोर्सिंग का मैंने प्राइस आपको बता दिया। दे ऑल द पार्टनर्स आज के डेट में ऑफलाइन चैनल में रिफिट हमने थोड़ा एक क्रेडिबिलिटी मार्केट में बना लिया है। तो द पार्टनर्स हूसोएवर इज़ सोर्सिंग फ्रॉम अस एंड हूसोएवर इज़ नॉट सोर्सिंग फ्रॉम अस, Okay, okay, एंड okay. हम चूँकि उनके साथ में काम कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट के साथ में फॉर सो लॉन्ग, एंड वी हैव अदर चैनल्स आल्सो फॉर सोर्सिंग इन्वेंटरी। इस चैनल का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज क्या होता है? कंसिस्टेंसी ऑफ द इन्वेंटरी। देयर आर मेनी पार्टनर्स जो कि आपको साल में 2-3 महीना इन्वेंटरी रेगुलर सप्लाई देंगे, 4th मंथ में आएँगे, बोलेंगे अभी कोई इन्वेंटरी हमारे पास नहीं आ रहा है, जब आएगा तब बताएँगे। अब जो पार्टनर मेरे पे डिपेंडेंट है बिज़नेस के लिए, वो पार्टनर को मतलब वो क्या करेगा? जब तक इन्वेंटरी नहीं आ रहा है, वो दुकान बंद करके तो नहीं बैठेगा ना, या अपना स्टोर तो शट नहीं कर देगा। तो इट बिकम्स आवर लायबिलिटी, आवर रिस्पांसिबिलिटी कि अगर कोई मेरे साथ में जुड़ा हुआ है, तो मैं मंथ ऑन मंथ बेसिस पे हम उसको कंसिस्टेंटली इन्वेंटरी जो है सप्लाई करते रहें। चौथा, हमारा जो फोकस है, एज़ आई सेड, इट लाइज़ इन टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज़। हमने उनके लिए प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करा है
इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ हैसल। पहले क्या होता था, अ पार्टनर सिटिंग एट अ जस्ट इमेजिन, तो बंदा बैठा हुआ है लद्दाख में, वो उसको पता है रिफर्बिश्ड का फ़ोन वैल्यू प्रोपोज़िशन बहुत अच्छा है, मैं यहाँ पे फ़ोन बेच के अच्छा मार्जिन भी कमा लेता हूँ। बट जस्ट बिकॉज़ वो उसके लिए एक हैसल होता था फ्रॉम लद्दाख और फ्रॉम मणिपुर कमिंग टू दिल्ली और बैंगलोर और मुंबई टू सोर्स द इन्वेंटरी। अच्छा, यहाँ आने के बाद में भी, दिल्ली आने के बाद में, देयर आर एन नंबर ऑफ पार्टनर्स जो कि इन्वेंटरी लिक्विडेट, उसमें से किसी एक को शॉर्टलिस्ट करना, फिर उस पे ट्रस्ट करना कि मेरे को जो ये क्वालिटी या ग्रेड ऑफ इन्वेंटरी बता रहा है, विल इट बी एज़ पर द कंडीशन व्हाट ही इज़ क्लेमिंग? तो वो करके, वो 4-5 दिन, 7 दिन जो है वो रह करके, वो क्या होता था, कुछ इन्वेंटरी ए से लेता था, कुछ बी से लेता था, कुछ सी से लेता था। इन द प्रोसेस अपना हफ्ता दिन वो टाइम अपना स्पेंड करता था। रहने का, खाने का, एडिशनल कॉस्ट, वे बैक उसके जहाँ पे वो बिज़नेस कर रहा होता है, मणिपुर या लद्दाख, वहाँ पे उसका दुकान बंद है हफ्ते दिन के लिए। वहाँ पे कोई बिज़नेस नहीं हो रहा है क्योंकि जो ओनर है वो आए हुए हैं सोर्स करने के लिए दिल्ली। तो हिज शॉप इज़ शट, महीने के 20 दिन ही काम कर पा रहा है। हम उनके साथ में जब हमारे पास में पहुँचे या हम उन तक जब पहुँचे, हमने उनको यही चीज़ सॉल्व करके दी है, व्हाट आई एम क्लेमिंग, हम जो आपको क्वालिटी कमिट कर रहे हैं, दैट क्वालिटी विल डिलीवर टू दैट क्वालिटी। प्राइस जो हमारा है, दैट इज़ बेस्ट। हम जो प्राइस ऑफर कर रहे हैं ऑफलाइन मार्केट में, इट विल बी एज़ कॉम्पिटिटिव एज़ एज़ अदर पार्टनर्स आर गिविंग इट। हम आपको ये एश्योरेंस दे सकते हैं कि आपको, यू डोंट हैव टू स्पेंड योर टाइम कमिंग टू आवर ऑफिस एवरी मंथ टू सोर्स द इन्वेंटरी। ना आपको टाइम लगाना है, ना आपको पैसे लगाने हैं, ना आपको हैसल लेना है। हम आपको इन्वेंटरी आपके स्टोर तक हम आपको अवेलेबल कराएँ। आज के डेट में वो उनका वही है कि दे जस्ट गेट द शीट, वो ऑर्डर कंफर्म करते हैं, दे ट्रांसफर द मनी, हम उनको बाय एयर शिपमेंट उनके स्टोर तक उनको पहुँचा। तो उनके लिए हैसल फ्री हो गया ना, वो आज के डेट में महीने का 30 दिन काम कर रहे हैं। पहले वो महीने का Right. 500 फ़ोन बेचते थे, आज के डेट में वो 700 पे पहुँच गए। तो दिस इज़ And हाउ वी even for the small retailer, the model is same. Like you give them a set of products, they don't choose. You choose and create a यस, यस, bundle for यस, them. एब्सोल्यूटली, Okay. एब्सोल्यूटली। When you say that आप quality commitment देते हो, what is that quality commitment? What does it mean? ग्रेट डेफिनिशन बनाया हुआ है। तो वी हैव आवर ओन डायग्नोस्टिक ऐप। होता क्या है, जब इन्वेंटरी मेरे पास वेयरहाउस में आती है, तो हमने अपना खुद का डायग्नोस्टिक ऐप बनाया हुआ है। दैट ऐप इज़ रन ऑन द फोन एंड वंस दैट ऐप इज़ रन, विदिन हाफ अ सेकंड, दैट ऐप जनरेट्स अ रिपोर्ट ऑन 37 चेक पॉइंट्स। फ़ोन का कैमरा का कंडीशन, डिस्प्ले कैसा है, वाइब्रेशन कैसा है, रिंगर कैसा है, वो पूरा रिपोर्ट जनरेट हो जाता है। उस रिपोर्ट में व्हाटएवर द प्रॉब्लम ऑफ द फोन, दैट ऐप आइडेंटिफाइज दैट प्रॉब्लम, basis the problem of that phone is allocated to that particular engineer in our refurbishment department. वो फोन रिपेयर होता है, रिपेयर हो जाने के बाद में दैट ऐप इज अगेन रन जस्ट टू क्रॉस चेक कि जो रिपेयर हुआ है वो 37 चेक पॉइंट्स ग्रीन सिग्नल है या नहीं। once our app gives a go ahead that this phone is ready to sell, then it goes to our channel. So that is the quality check which we have done in our own internal system, because of which हमारा जो failure ratio है that is less than 1%. मैं You उसको take भी back the consider device if there is a problem with it. only from retailers. Okay. तो retailer की अगर unsold inventory है तो that is their responsibility या you take Yes, it yes, back? yes, yes. They Okay, it's their source it at responsibility. their own हाँ, वो हाँ, अपने अपने okay. पूछते हैं। दिस एंटायर ऑफलाइन जो हमारा ऑफलाइन चैनल जो है, ये पूरा इन अ मंथ्स टाइम ऑलरेडी हमारा ऐप बन करके रेडी है। तो दिस एंटायर थिंग इज गेटिंग ऑटोमेटेड। तो ये सारी चीजें जो ऑल आवर चैनल विल, पूरा चैनल है, उनके पास में सिर्फ वो ऐप होगा, ऐप में दे जस्ट लॉग इन, उनके पास में बेसिस देयर रिक्वायरमेंट, जिसको रिटेलर्स चाहिए उनको रिटेल वाले के हिसाब से शीट दिखेगी, जो होलसेलर्स है उनको उनके हिसाब से शीट दिखेगी, डिस्ट्रीब्यूटर है डिस्ट्रीब्यूटर को उनके हिसाब से शीट। दैट टू दिस इज ऑल्सो ऑन जियो पिन कोड लेवल। तो ऐसा नहीं है कि मेरा कोई These phones also have some grading like यस, excellent यस, or good or यस, यस, average or something like that. यस, यस, यस। Okay. वो rating कैसे होती है आपकी? वो सो हम जो है बेसिकली सुपर्ब, वेरी गुड एंड गुड। How did you build this channel? That is supply point of view, Savi, that is not very easy. So we have been consistent in terms of performance. We have delivered numbers whenever it is required. Our contribution to their business is almost 40-45% of the total inventory they source. As a partner for, we have been very transparent, and whatever feedback we give, हम मार्केट्स को देखते हुए करके देखते कि इट शुड बी गुड फॉर द मार्केट। ऐसा नहीं कि मेरे को 5% मार्जिन ज्यादा बच रहा है तो मैं उनको फीडबैक दे दूं, बिकॉज यू रिड्यूस द प्राइस फॉर दिस मॉडल, बिकॉज आई विल बी एबल टू मेक 5%. Considering the entire market, and we give the feedback of
आपके साथ में भी चाहे वो अदर ब्रांड्स भी हैं, फीडबैक इज मोस्टली ऑन प्राइसेस मोस्टली ऑन प्राइसेस एंड द मार्केट फीडबैक कि हाउ वेयर द मार्केट इज मूविंग। आप जिस तरीके से, अगर आप इफ आई टॉक अबाउट करंट मार्केट से, तो मार्केट जो है वो हाई एंड वाले फोन्स जो 10,000 12,000 फॉर रिफर्बिश्ड पुराने वाले फोन्स का जो वैल्यू 8,000 10,000 12,000 14,000 वहां वाले की तरफ मूव हो रहा है। उनका डिमांड टीयर 2 टीयर 3 सिटीज से भी आना शुरू हो गया, वो ज्यादा हो रहा है। तो कॉन्स्टेंटली हम उनको फीडबैक दे रहे हैं कि ऐसे वाले मॉडल्स का कस्टमर ऑफरिंग प्राइस जो है वो बढ़ाना चाहिए, सो दैट हमारे पास में उसका इन्फ्लो ज्यादा है, ताकि हम वहाँ पे अपने चैनल में ये मटेरियल जो है वो ज़्यादा पुश कर पाएँ। तो दिस टाइप ऑफ ओके फीडबैक इन टर्म्स ऑफ मॉडल, इन टर्म्स ऑफ प्राइस, किसी का प्राइस कम करके किसी का प्राइस बढ़ा देना है। तो दिस टाइप ऑफ फीडबैक। implication है like you're saying a customer who's exchanging his old phone in Bihar and a customer who's exchanging his old phone in Delhi will get a different value for that exchange. What is the reason to do this? रीज़न टू डू दिस, फॉर एग्जांपल अगर कोई दिल्ली में है कस्टमर, दिल्ली वाले कस्टमर के लिए क्या है कि उसके लिए एक्सचेंज करने के लिए एन नंबर ऑफ ऑप्शंस है उसके पास में। क्योंकि उसके पास में बहुत सारे चीज़ें हैं। ऑफलाइन स्टोर भी है जो एक्सचेंज करके ले लेता है, देयर आर एंड प्लस कस्टमर ज़्यादा एजुकेटेड भी है मेट्रोज़ में। तो वहाँ पे वो कस्टमर को उस फ़ोन का प्राइस जो है वो ज़्यादा दिखाएँगे, ताकि वो उनके पोर्टल पे आ जाए। Okay. जो टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में है, जो छोटे शहर में बैठा हुआ है, वो वहाँ पे उसके पास में, वो पहले क्या होता था कि उसके पास में ऑप्शन, मतलब प्राइस सेव होने की वजह से उसको वो लगता था कि नहीं ठीक है, मेरे को तो ना ज़्यादा, मतलब उसके पास में टाइम रहता था कि अगर कोई दूर में भी जा कर के अगर कोई दुकान है जहाँ पे एक्सचेंज हो करके उसको ₹500 भी ज़्यादा मिल जाता था, तो छोटे शहर वाला बंदा प्रेफ़र करता था, आई विल सेव ₹500 और मैं वहाँ जा कर के एक्सचेंज करके ₹500 ज़्यादा रियलाइज़ करूँ। व्हेयरएज़ कस्टमर सिटिंग इन मेट्रो, उसके पास में देयर इज़ नो टाइम टाइम कंस्ट्रेंट है। उसको वो लगता है कि भाई मेरा काम हो जाए जल्दी से जल्दी, क्लिक ऑफ अ बटन में मेरा। तो यहाँ पे यार ऑफरिंग मेट्रो में ₹500 कम भी होगी, और वही पैसे को आप यूज़ कर लोगे टू गेट दैट इन्वेंटरी फ्रॉम टियर 2 और टियर 3 सिटी, उसको ₹500 ज़्यादा ऑफर कर दोगे, वो तो आपका कस्टमर बन गया ना। तो आपने वो क्या हुआ, आपने वहाँ से उससे फ़ोन भी ले लिया पुराना, और आपने नया फ़ोन भी उसको बेच दिया, क्योंकि आपका वो पोटेंशियल कस्टमर भी बन गया। नया फ़ोन वो Hmm. लेगा, उसको नया फ़ोन भी Okay. लेना है। What about like even brands offer trade-ins now? Like आप सब Samsung store में जाके भी trade-in कर सकते हो Yeah, या that market is quite big. You know, Samsung, you're surprised, the Samsung exchange program which happens at their storefront, that market is as big as, 2,500, 2,700 CR. but you're not accessing that inventory. अभी से ही No, काम now चल we are partners with other brands as well. And now we are partnering, we'll be participating in these type of. Okay, okay. So what you're saying is ये 35% जो बच गया है, बाकी ये split between Amazon and like Samsung and all these brand इन सब का मिला के 35% है and 60-65% को जा रहा है trade in phones. Correct. Yes. Amazing. Okay, amazing. Okay. So इसमें so it seems like your constraint to growth is working capital क्योंकि आप चैनल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप उसमें जितना चाहो सप्लाई कर लो. Is that the case? It's just working capital Yeah. or Yeah. what are थोड़ा the working constraints capital. to growth? So obviously that is one of the constraints, and which we also see as the major reason कि हम जो हमारा प्लान है टू डू these things in, with this set of working capital, मैं शायद 3 साल में इतना कर पाऊंगा अगर हमारे को वर्किंग कैपिटल, एंड वी आर ट्राइंग टू अरेंज दैट एडिशनल वर्किंग कैपिटल इंफ्यूज करने के प्रोसेस में हम हैं, होपफुली इन अ मंथ्स टाइम वो हमारा वो भी जाएगा सॉर्ट आउट। Right? हाँ, आपके लिए वर्किंग कैपिटल इज अ बिग रॉ मटेरियल यस, बेसिकली. ओके. एंड वो आपने मतलब यू बिल्ट इट बेसिकली वो बूंद बूंद करके टाइप्स बिल्कुल इनिशियल वैसे डेज ही में था। ये. हाँ, इनिशियल हाँ. तो मतलब मैं अपनी तो शुरुआत के हम फर्स्ट हाफ ऑफिस आकर के, क्योंकि ऑफिस में भी हमने छोटा सा क्यूसी का सेटअप कर रखा था। ऑब्वियसली हमारे पास मैन पावर ज्यादा नहीं था, एवरीथिंग वाज लिमिटेड, वर्किंग कैपिटल वाज लिमिटेड, मैन पावर वाज लिमिटेड, हमारे पास टाइम भी लिमिटेड। वो इसलिए लगता था क्योंकि काम करने के लिए सुबह 9 बजे से लेकर के रात शाम के 6-8 बजे तक मार्केट खुला होता था। हालांकि हम अपना काम जो है, तो रात का काम रात में हम बैठ करके हम अपना ऑफिस का काम करते थे। किसी को पता नहीं था कि रिफर्बिश्ड फोन, सबको पुराना फोन पता होता है। अब व्हाट वी आर डूइंग इज नॉट पुराना फोन, दैट्स अ रिफर्बिश्ड फोन। जो उसमें प्रॉब्लम है, वी हैव रिफर्बिश्ड द प्रॉब्लम ऑफ दैट डिवाइस एंड वी हैव रिफर्बिश्ड इट, वी हैव रिपेयर्ड इट ऑलरेडी। बट मार्केट में वो क्या टर्म चलता था, अच्छा पुराने फोन का काम है। देन वी यूज्ड टू राइट. एजुकेट देम दैट ओके. दिस इज नॉट पुराना फोन, दिस इज रिफर्बिश्ड। हाँ. पुराना हाँ. फोन इज दैट आप एक फोन यूज कर रहे हो, आप शॉप पे गए, आपने अपना फोन दे दिया, वो पुराना फोन हुआ, क्योंकि उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज है, किसी को नहीं पता। बोलो मैं जो आपको बता रहा हूँ, इसमें जो प्रॉब्लम है उसको हमने ऑलरेडी ठीक करके रिफर्बिश कर दिया। तो उनको एजुकेट करते थे। हमारे कहने पे हम बोलते थे ठीक है, जो छोटे काउंटर्स होते थे उनको बोलते थे आप 5 यूनिट लेकर के देखो, विल अगेन कम बैक आफ्टर 3 days, अगर नहीं होगा सेल तो विल टेक बैक द इन्वेंटरी।
लाइक एरिया सेल्स एग्जीक्यूटिव्स जो शुरू बिल्कुल, करता है बिल्कुल, काम बिल्कुल। हाँ, 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 ऑफ हाँ। चैनल बिल्डिंग अ हाँ, हाँ, हाँ। चैनल, यू गो फ्रॉम डीलर टू स्क्रैच डिस्ट्रीब्यूटर टू रिटेलर, यस, सबको जाके आप कन्विंस करते हो कि मेरा प्रोडक्ट कैरी करो। दैट इज व्हाट ये बोथ ऑफ यू डिड इन द करेक्ट, अर्ली इयर्स। एग्ज़ैक्टली। इवन आवर डिस्ट्रीब्यूटर्स आल्सो जो हमारे साथ चॉकलूज़ में थे, जो 15-20 लाख, 25 लाख, 50 लाख का काम करते थे। जब हमने ये करके शुरू करा तो उनको भी अगर हम 20-25 लाख का काम जब करते थे हमारे साथ, उन्होंने काम तो शुरू कर दिया बट लेकिन उनका जैसे मैंने बताया दीज़ आर दोर पार्टनर्स जो कि इस इंडस्ट्री से नहीं है। उनका कोर लार्ज अप्लायंसेस या बट वो एक्सेसरीज़ शॉपक्लूज़ वो में तो रहता है। दे वर जस्ट वर्किंग कैपिटल प्रोवाइडर ना, इन अ वे। यस, दे वुड यस, बाय हाँ, द इन्वेंटरी एंड सेल इट थ्रू शॉपक्लूज़। वो सेल उनका सेल खुद इट का वो आगे चैनल कुछ था ही नहीं। कोई उनका हाँ, उनका कुछ था नहीं, लेकिन जब यहाँ पे आ गए तो उनकी डिपेंडेंसी हम उनको बिलिंग तो दे देते थे, बट उनकी डिपेंडेंसी हमारे पे होती थी कि ठीक है, आई विल टेक 5000 यूनिट्स इफ यू आर सेइंग, बट वेयर विल आई लिक्विडेट दिस 5000 यूनिट्स? तो उनका राइट। लिक्विडेशन का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूज्ड टू बी आवर्स कि हम ओके। होलसेलर्स तो दिस इज हाउ वी क्रैक होलसेलर्स कि ठीक है, उनके पास में हमने उनको 2000 बिल करा है, अब उतना टाइम हमारे पास में लिमिटेड है, तो हमने 3-4 छोटे-छोटे होलसेलर्स पकड़े, भाई तू 500 यूनिट ले, यू बाय दिस 500 यूनिट्स एंड यू गेट दिस बिल्ड फ्रॉम हियर। उनकी बिलिंग हम 5-500 4 को करा दिया, उनका बिलिंग करा दिया। उन्होंने 7-8% 10% मार्जिन बना लिया। जो छोटे-छोटे पार्टनर्स को होलसेल वाला जो रिटेलर वाला चैनल था, वो हमारे को बिल्ड इसलिए करना था क्योंकि वी आर वेरी क्लियर फ्रॉम डे 1 कि यहाँ पे मेन वैल्यू एडिशन वाली इन्वेंटरी बिक रही है एंड हियर ओनली वी आर गोइंग टू मेक गुड मनी। और आज के डेट में भी हमारा मेन जो मेजॉरिटी ऑफ आवर प्रॉफिट इज कमिंग फ्रॉम दैट सेम चैनल। तो वो जो B2R वाला था एंड दैट बैलेंस बिटवीन B2R और डिस्ट्रीब्यूशन को बैलेंस करते-करते बीच में होलसेल वाला चैनल भी बनता चला गया। And this is how we have bifurcated these three channels. फिर after first year, to increase just to working capital का हमारे को और हमारे को working capital बढ़ाना था, तो obviously banks के साथ में कुछ limits मिली, तो हमने एक additional लैपटॉप्स और लार्ज अप्लायंसेस भी हमने शुरू कर दिया। उसमें लेकिन हम कोई रिफर्बिशमेंट नहीं करते थे, उसमें हम सिर्फ वैल्यू मतलब देयर वाज़ नो वैल्यू एडिशन। उसमें हम सिर्फ सेग्रीगेट करके क्योंकि जिस चैनल में हम काम कर रहे थे, उसी चैनल में लैपटॉप्स और लार्ज अप्लायंसेस भी जा रहा था। तो वी रियलाइज्ड कि हम ये वाला वॉल्यूम को क्यों छोड़े, यहाँ पे भी अगर हम कुछ पैसे भी अगर बना लेंगे और उसमें मॉडल ऐसा था कि भाई आई हैव द सोर्सेज़, मैं सोर्सिंग करके दे दूँगा। पैसे मेरे को तुम्हारे से पूरा एडवांस चाहिए फॉर दिस कैटेगरी, लार्ज आपको अप्लायंसेस और वर्किंग कैपिटल लैपटॉप। नहीं ब्लॉक करना था उसमें। हाँ, मेरे को वर्किंग कैपिटल नहीं ब्लॉक करना था। हमने बोला तुम्हारे को 500 1000 यूनिट्स व्हाटएवर क्वांटिटी यू वांट आई विल गिव यू दैट एट दिस प्राइस। जो प्राइस आप माँग रहे हो उससे मैं आपको उस प्राइस से बेटर प्राइस पे दूँगा। बट द ओनली कंडीशन इज़ पैसे हमारे को एडवांस में चाहिए। वो जब हमने बिज़नेस वो वाला करा तो उसमें हमारे पास एडवांसेस आते थे। कई बारी ऐसा भी होता था वो वाला कैपिटल को हम यूज़ करके मोबाइल को सोर्स करते थे टू गेट वहाँ का बिज़नेस बढ़ाते थे। जब तक ये वाली इन्वेंटरी आती थी लैपटॉप की या लार्ज अप्लायंसेस की वहाँ से लेकर के उनको दे देते थे। तो कुछ पैसा हमने लार्ज अप्लायंसेस लैपटॉप्स में बनाया। फ़ोकस शुरुआत से हमारे को वो था कि हाँ, ठीक है, हमारे को पहले बिकॉज़ दिस मोबाइल बिज़नेस इन इटसेल्फ इज़ सो कॉम्प्लेक्स और इतना बड़ा है। इसी को सॉल्व करते-करते वी न्यू दैट इट्स गोइंग टू टेक अस एजेस टू सॉल्व दिस ओनली। तो इसलिए हमारा फ़ोकस फॉर नाउ आल्सो इट्स बीन मोबाइल 90% of our business comes from mobile. We have also imposed on our channel. So once you confirm the lot, you have to give 20-25% of the advance payment at the time of lot booking, and before dispatch, you have to make the balance payment. तो आपकी फिर वर्किंग कैपिटल प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना फिर, या अभी भी थोड़े नहीं, तो सॉर्टिंग अभी के लिए एक तो वो रहता है बट वो उतना ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक नहीं है बट सिंस नाउ वी आर लुकिंग एट विद दिस करेंट वर्किंग कैपिटल 200 करोड़ 250 करोड़ तक हमने बिज़नेस पहुँचा लिया, कर रहे हैं। है? नाउ वी हैव टू टेक दिस टू 500, 700, 800 सीआर इन द नेक्स्ट 2 इयर्स। विद दिस करेंट सेट ऑफ वर्किंग कैपिटल मेरे को पता है कि हाँ, द सप्लाई जो मेरे पास में सप्लाई आ रही है, नाउ इट इज़ गोइंग टू बी 3x और मैं अगर अपना पार्टिसिपेशन परसेंटेज कंट्रीब्यूशन विद द और टू आवर सोर्सिंग पार्टनर्स अगर मैं सेम भी रखता हूँ, तो मेरे को अपनी वर्किंग कैपिटल ट्वाइस तो करनी होगी। क्योंकि मेरे को अपना शेयर वही भी रखूँगा लेकिन इनफ्लो तो मेरे पास में 3x आने वाला है ना। Right. Okay. Fascinating. Basically, the whole distribution, channel distribution game runs on working capital. इसमें हमने मतलब कुछ चीज़ें जो है वो अच्छी करी व्हिच वी बिकॉज़ मेनी आवर पार्टनर्स नाउ आल्सो वी हियर दैट दे गिव क्रेडिट फैसिलिटी व्हिच वी हैव नेवर गिवन राइट सिंस डे वन क्योंकि हमारे okay. So why do you need distributors and wholesalers? होगा? नहीं मार्जिन बेटर होगा बट कैपिटल रोटेशन जो है दैट इज आल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स। डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर के पास में क्या है मैं उनको इन्वेंटरी सेग्रीगेट करके रिफर्बिश करके जो उनके पास इन्वेंटरी जाती है उनके द क्वांटिटी इज सिंस द क्वांटिटी फॉर देम होलसेलर्स इज मोर देन 500 एंड डिस्ट्रीब्यूटर इज मोर देन 1000।
वहाँ पे मेरे पास में एक बार में पैसा जो है 1000 यूनिट्स का और 500 यूनिट का आ रहा है। व्हेयरएज़ जो रिटेलर्स हैं, ये 50 यूनिट, 100 यूनिट, तो ये पूरा इन्वेंटरी यहाँ पे पूरा रोटेशन होने में इट टेक्स 5 टू 7 डेज़। यार होलसेल चैनल में मेरे पास यार 5000 क्वांटिटी है, विद इन 2 डेज़ आई गेट माय वर्किंग कैपिटल बैक। तो राइट, चाहे मेरे ओके। पास अगर एडिशनल वर्किंग कैपिटल भी यार आ भी जाएगा, तो हमारे को एक फेयर बैलेंस दोनों का बना के चलना बहुत ज़रूरी Doing more branding of Refit Global. Like you said, you don't want to be just a trader. हाँ, तो द ये जो सारी टेक ऑटोमेशन और जो हम जो सारी अब जो हमारा डायग्नोस्टिक ऐप, टेक ऑटोमेशन, मोबाइल एप्लीकेशन फॉर आवर ऑफलाइन पार्टनर्स, ये जो सारी चीज़ें हैं, तो हमारा ब्रांडिंग का आइडिया ये नहीं है कि मैं किसी सेलिब्रिटी को हायर कर लूँ, रिपीट ग्लोबल पुराना फ़ोन, नया फ़ोन दिखा के और वो करके मैंने ब्रांड बना लिया। Okay, तो हमारे को वो okay, लगता है दैट्स अ वेस्ट ऑफ मनी, कोई भी आके कर okay, सकता है। मैं जाऊँ okay. किसी को 5 करोड़ रुपए दूँ, किसी सेलिब्रिटी को एक रिपीट का डब्बा पकड़ा दूँ, 4 वैल्यू प्रोपोज़िशन बता दूँ, 6 महीने तक 2 महीने तक ऐड चला दूँ और बोलूँ मैंने ब्रांड बना दिया। तो हमारा आइडिया वो नहीं है ब्रांड बनाने का, हमारा वो लगता है कि ठीक है, आप कुछ ऐसी चीज़ें करो जिससे कस्टमर का या पार्टनर का ट्रस्ट आपसे, आप जिस इंडस्ट्री में हो, आपको ब्रांड, तो उसी इंडस्ट्री को कैटर करने के लिए आपको अपने आप को ब्रांड बिल्ड करना है, राइट? तो उस इंडस्ट्री में जो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनका काम आप किस तरीके से आसान कर रहे हो और उनका ट्रस्ट आप पे कितना ज़्यादा हो रहा है, दैट इज़ हाउ यू बिल्ड योर ब्रांड। तो हमने उनको उनकी लाइफ ईज़ी करने के लिए और बिज़नेस को ऑटोमेट करने के लिए वी आर कमिंग अप विद वेरियस प्लस इफ रिक्वायर्ड B2R में हम थोड़ा-सा स्पेस लेने के लिए इन शॉप ब्रांडिंग, जो दुकान के जो बोर्ड्स हैं, दोज़ थोड़ा-सा अंदर में काउंटर शेयर लेने के लिए हमने उनको एक बना करके अंदर में डिज़ाइन दे दिया। दोज़ ऑल थिंग्स वी आर डूइंग। Okay. Like things like say boxing the phone. Most phones you would be दैट्स getting would be without box, no? यस, वो हमारा है So ब्रांड का। नाउ वी आर आल्सो व्हाट वी आर डूइंग इज कि हमारा इस महीने से ऑल द डिवाइसेस व्हिच गोस इनटू ऑफलाइन मार्केट, सो देयर इज अ क्यूआर कोड ऑन द बैक साइड ऑफ द डिवाइस। पहले क्या होता था, कस्टमर को रिटेल आउटलेट रिटेलर को फोन को डब्बे से श्रिंक रैप से खोल के कस्टमर जस्ट नीड्स टू स्कैन दैट क्यूआर कोड, वो फोन का एक्चुअल जो क्यूसी रिपोर्ट है 37 चेक पॉइंट्स जो भी है, उसकी तुरंत पूरी एक्चुअल रिपोर्ट जो फोन की खोल करके आ जाएगी विद द एक्चुअल इमेज ऑफ द फोन व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉक्स। ज़ूम इन, ज़ूम आउट करके आपको जहाँ देखना है 1 स्क्रैच है, 2 स्क्रैच है, जहाँ पे स्क्रैचेज़ अगर कुछ मिनिमल होगा भी, दैट इज़ आल्सो मार्क्ड। दिस इज़ द मिनिमल स्क्रैच व्हिच इज़ इनसाइड व्हिच इज़ देयर इन द फॉर्म। wow, तो वो हैसल है very ही नहीं nice, कस्टमर के लिए। very nice. तो वो रिटेलर को फिर डब्बा खोलने की जरूरत नहीं, he can say कि कोई ज़रूरत ही ये नहीं है। हाँ, सारा इधर है। वाओ, दिस इज अक्रॉस ऑल चैनल्स, लाइक डिस्ट्रीब्यूटर को भी बॉक्स के साथ जाता है विद द क्यूआर कोड एंड ऑल वो दैट। ऑप्शन दैट इज़ फॉर दिस चैनल, इनके पास में ऑप्शनल रहता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास में, कि वेदर ओके, यू बाय इट विद द बॉक्स और विदाउट द बॉक्स, क्योंकि वो उनको एडिशनल कॉस्ट होता है ना, मार्जिन में वो ऐड होता है। तो उनके पास में वो ऑप्शनल रहता है। बाकी B2R वाले चैनल में इट्स 100% विद द बॉक्स। okay. So what you're building on retail is basically more directly competing with like a Cashify. यस, Cashify का यस। retail direct sales होता है या they also sell to like through No, channel like they also have distribution channel also, but and also they sell this device जो Phone Pro, ये Cashify का जो ये वाला फुल्ली बॉक्स वाला फ़ोन जो वो बेचते हैं, they sell it with the brand Phone Pro के नाम से बेचते हैं। वो and उनका for which they टारगेट have offline stores. Cashify रन स्टोर्स जो है, वो वहाँ से भी बेचते हैं। Acha, so Cashify is in a way competing with retailers. Like they have set up offline stores where customers can come and buy refurbished products instead of going to a Yeah, retailer. they can obviously, हाँ, they are doing that, but you know that is not a long term thing to do. आज की डेट Why is में that? you have funds and you have you have ample money, तो आप वो करके खोल रहे हो, बट अगर आप स्टोर पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आई मीन ROI पॉइंट ऑफ व्यू, तो दैट इज नॉट फीजिबल। Okay, okay. Basically, the only way to successfully do refurbish is you really have to have a banya mindset. मतलब you have to बढ़िया every penny. माइंडसेट एंड प्लस एज वी से कि हमारे तो जब शुरुआत में पूछते क्या करते हो, हम तो बोलते थे हाँ ठीक है, हम कॉर्पोरेट कबाड़ी वाले हैं। ठीक है। वही है, मतलब हम, हमारे को पता है कबाड़ जो है, वो जो कबाड़ है उससे कैसे उसको ठीक Value करके पैसे निकालनी है. बनाने, वैल्यू निकालनी है उससे। Right, तो right, हमारा वो right. था कि हाँ ठीक है, नथिंग, कोई भी चीज़ जो है ना वो बुरा नहीं है। हर एक चीज़ में पैसा लगाओ, दिमाग ठीक से और सही चैनल बना लो, तो हर एक चीज़ बिकता Uh, है। स्पेशली इन इंडिया तो सब चीज़ बिकता है। You just need to have the amazing. right mindset and right channel to sell that. Okay, okay, amazing. How big is this refurbished market? मतलब total इसका and how does it split up? इसमें और कौन से players हैं? You are there, Cashify is there. Who else is there? मतलब पहले पहले market की बात करो. How big is this market?
So the entire total overall refurbished market is $4.2 billion. This is पूरा entire organized and unorganized both सारा मिला करके जो हाँ, expected जो I and इसमें ICR का ऑर्गेनाइज जो कितना होगा? व्हाट परसेंटेज? organized would be 50%. So that is what online companies and brands are trying to do कि जो unorganized में जो inventory जा रही है to get that inventory to that organized वाले channel. इसीलिए So who customer are the offering other players in organized market? is there, extra cover is there. So there are multiple partners which are spread geographically wise. वो अलग-अलग locations पे हैं. Quantity भी वो करते हैं. मतलब मैंने कहा 20,000, 25,000 quantity in a month they do, but Okay. they only do trading. आप आप क्या करते हो करेक्ट है. जब आप मार्केट विजिट जाते हो? लाइक यू व्हाट डू यू डू इन दैट? बिकॉज़ अब तो काफ़ी कुछ नहीं तो हम ऑटोमेटेड ऑनलाइन है ना, हाँ, तो तो या या तो यू हम गो टू पार्टनर्स के साइन पास अप? में जो हम अच्छा, नहीं, या तो हम अपने जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, हम उनके पास जा करके विज़िट करते हैं। उनसे जा करके बात करके आधे 1 घंटे बैठ गए, 2 घंटे बैठ गए, बिज़नेस के बारे में बात हो गया। उनसे बहुत सारे फीडबैक बिकॉज़ वो मार्केट में बैठे हुए हैं, उनसे फीडबैक। या हम किसी नए स्टोर पे जाते हैं, जो या तो हमारे जहाँ पे इन्वेंटरी हमारा कॉम्पिटिटर दे रहा है, या वो काम नहीं कर रहा है, उससे जा करके बिकॉज़ उसको नहीं पता है हम कौन हैं। हम जाते हैं उसके पास में एज़ अ कस्टमर कि वो उसका क्या फीडबैक है हमारी इंडस्ट्री को लेकर के, वो क्या बोल रहा है। वो अगर बेच रहा है, तो क्यों बेच रहा है और अगर नहीं बेच रहा है, तो क्यों नहीं बेच रहा है। हम जाके उससे खुद पूछे पुराना फ़ोन है, रिफर्बिश्ड फ़ोन है आपके पास? नहीं रिफर्बिश्ड फ़ोन नहीं है, क्यों नहीं है? कहाँ पे मिलेगा? तो वी जस्ट वांट टू गैदर इन्फॉर्मेशन कि हाँ, लोग को हम कितना डीप जाते जा रहे हैं। तो हम टियर 2, टियर 3 में भी जा करके कस्टमर को जो हमारे पार्टनर है, रिटेलर्स जो होते हैं, हम उनसे भी जा करके यही फीडबैक उनको हम एजुकेट इसी तरीके से करते हैं कि आप कस्टमर को क्या वैल्यू प्रोपोज़िशन दे रहे हो। आप कस्टमर आपके पास में अगर आया है, सो टियर 3 सिटी में जैसा हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस करा था, अगर आप एक हाउस होल्ड का एवरेज इनकम देखो इट इज़ 20-25,000 ठीक है? उनके घर में इट इज़ नॉट लाइक मेट्रोज़ के अगर 5 मेंबर हैं, तो घर पे 6 फ़ोन है। वहाँ पे अगर घर पे 5 मेंबर है, तो 2 फ़ोन होगा। जो घर के बाहर जाता है, उसी के पास रहेगा 1 फ़ोन और 1 फ़ोन घर पे। उसमें भी चांसेस ज़्यादा ये होते हैं कि उसमें से 1 फ़ोन फीचर फ़ोन होगा। अब उसको जब फ़ोन बदलना होता है या फ़ोन जब लेता है, फीचर फ़ोन टियर 3 सिटी में आज के डेट में भी 2 से ₹2,500 वो जब फ़ोन लेने जाता है, वो शॉप पे गया फीचर फ़ोन लेने के लिए। वहाँ पे जब उसको दुकानदार रिफर्बिश्ड स्मार्टफ़ोन ऑफ़र कर देता है ₹2,500 में, जिसमें वो फ़ोटो भी खींच सकता है, ठीक है? वहाँ पे टियर 3 सिटी में उस कस्टमर को कैमरा का मेगापिक्सल से कोई मतलब नहीं है। वो फ़ोन कितना फ़ास्ट उसका प्रोसेसर है, उसको उससे मतलब नहीं है। आप उसका जॉय सोचो कि ही वाज़ यूजिंग एन कीपैड फ़ोन एंड नाउ ही इज़ अपग्रेडिंग टू एन स्मार्टफ़ोन। तो हमने भी जब कीपैड फ़ोन से जब स्मार्टफ़ोन पे आया तो फ़ोटो ले लेते थे, तो हम फ़ोटो को ज़ूम करके उसका पिक्सल नहीं देखते थे। वही बहुत बड़ी चीज़ होती है कि हाँ भाई, मेरे राइट। पास में ना फ़ोटो आ रहा है, व्हाट्सऐप चला रहा हूँ, मैं फ़ोटो ना भेज सकता हूँ यूट्यूब। अगले हाँ, यूट्यूब चल गया फिर। तो उसके लिए तो मतलब बिल्कुल वो जॉय हो जाता है कि हाँ, ठीक है, मैं ₹2,500 में या ती एंड दैट टू ब्रांडेड फ़ोन। दुकानदार उसको साथ में ये भी कम्फर्ट दे रहा होता है कि ठीक है, आप लो, अगर आपको 6 महीने के बाद में फ़ोन बिल्कुल ठीक रखना। फ़ोन अगर तुम्हारा कंडीशन ठीक रहेगा, तुम अभी 2,500 3,000 में ले रहे हो, मैं तुम्हारे से ₹2,000 में आज से 6 महीने के बाद में तुम्हारे को बेचने का मन होगा, इससे और ऊपर वाला मॉडल लेना होगा, मेरे पास ही आना, इसका 2,000 दे दूँगा तुमको इसके बदले इससे और अच्छा मॉडल। इज़ देयर अ साइंस बिहाइंड हाउ यू आर बिल्डिंग योर चैनल? मतलब आपको कैसे डिसाइड किया आपने कि लद्दाख जाके मैं किसी को ढूँढूँगा, या कि मैं पहले लद्दाख जाऊँ या पहले मेघालय जाऊँ? लाइक हाउ यू एक्सपैंड नहीं, योर चैनल? स्टार्टेड गेटिंग टू चैनल लाइक रीजन्स लाइक लद्दाख हो गया, शिलांग हो गया, मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया। जब हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स को देते थे इन्वेंटरी तो द पार्टनर सिटिंग राइट ऑन द ईस्ट ऑफ आवर बेस्ड आउट ऑफ कोलकाता उसको हम देखते थे उसको हमने पूरा कोलकाता या बंगाल उसको रीजन दिया हुआ है। अब उस बंगाल रीजन में हम जब मार्केट जाते थे मार्केट करते थे हमारे को लगता था यहाँ का मार्केट पोटेंशियल आज के रेट में मेरा पार्टनर आज 4 करोड़ कर रहा है डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ का मार्केट पोटेंशियल आराम से 10 करोड़ 12 करोड़ है। उससे हम जब उसका हम डेटा लेते थे कि आपका इन्वेंटरी कहाँ तक जा रहा है, तो हम देखते थे कि बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, जो बिल्कुल ही छूटी हुई हैं। कुछ पार्टनर्स हमारे को भी रीच आउट करते थे, हमारे लड़कों को रीच आउट करते थे, कि हमारे पास असम से बंदे आते थे दिल्ली ऑफिस में। तो जस्ट इमेजिन वो बंदा असम से ट्रेन लेकर के 2 दिन ट्रेन में सफर करके दिल्ली आ रहा है जस्ट टू सोर्स 200 क्वांटिटी। तो जस्ट इमेजिन वो 200 क्वांटिटी के लेने के लिए यार इतना हैसल पैसा लगा रहा है, इतना टाइम लगा रहा है, तो वो वहाँ असम जाकर के किस प्राइस पे बेचता होगा? उसको भी वहाँ पैसे बनते होंगे हाँ, तभी तो वो मार्जिन्स इतना मस्ट एफर्ट करके जस्टिफाई। बस नहीं। हाँ, हाँ, तो हाँ। यही हमारे को ढाई 3 साल पहले कोलकाता में जब हम बैठे थे द सेम थिंग हैपेंड।
तो फिर हमने बोला कि चलो ठीक है, एक बारी हम अप कंट्री मार्केट का टूर बनाते हैं विथ आवर सेल्स टीम। हमने अपनी सेल्स टीम को बोला कि जो हमारा डेटाबेस है, उन डेटाबेस में से फ़िल्टर आउट करके जो-जो बंदे रिफर्बिश्ड का काम कर रहे हैं, उनको कॉलिंग करो, कॉलिंग करके उनसे पूछो कि वो ले रहे हैं तो कहाँ से ले रहे हैं और कैसे ले रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं। उसमें से मैक्सिमम ने प्रॉब्लम बस खाली अपना यही बताया कि हमने एक बार तो करा था, पैसा अच्छा बना, लेकिन फिर हमारे को आना-जाना बहुत, तो फिर हमने जो है अपने टीम के साथ में या हमने खुद भी जो है उनके पास में विज़िट करा। जब वहाँ वही सेम पहुँचे उस लोकेलिटी में, और हमारे को 6-7 लोग के बारे में पता चला कि ये रिफर्बिश का काम करते हैं, और टोटल 15 दुकानें थी। हमने 15 दुकानों में विज़िट करा। जिन्होंने कर रखा था, वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा अच्छी थी, पहले उनको कन्वर्ट करा, 2 से 4 करे, 4 से 6 करे। Amazing. Tell me something, like you have that understanding at the retail level and हाँ। Geophone, matlab, you literally had Google investing money in Geo platforms with the bet ke Geophone बेचेंगे with a special version of Android and all that. But anyway, it didn't live up to the hype. हाँ, वो एक्चुअली वो क्या था कि दैट सेम थिंग जो रिलायंस का जो पहले वाला प्रॉब्लम हुआ था ना, जो धीरू भाई अंबानी के टाइम पे वो जो फ़ोन आया था उस समय, एक फीचर फ़ोन उन्होंने लॉन्च करा था, कर लो दुनिया मुट्ठी में। उस हाँ, समय रिलायंस का फ़ोन सीडीएम है। हाँ, रिलायंस सीडीएमए फ़ोन जब आया था, उस समय जब हाँ, आया था वो बहुत चला था। बट हाँ। ओवर अ पीरियड ऑफ 6 महीने, साल भर के बाद में लोगों को रियलाइज़ होना हुआ ये तो फँसा दिया हम लोगों को। इसमें सिर्फ़ यही सिम चल सकता है। इसके अलावा कुछ चलेगा ही नहीं। मैंने पैसा अच्छा, जो है वो शुरुआत में तो हमारे को दिखाया हमारे से पैसे नहीं ले रहा है, बट हमारे को जितने का रिचार्ज करना पड़ रहा है और जो पैसा हमारे को इनकमिंग आउटगोइंग का लगता है, उसमें तो इन्होंने फ़ोन का भी पैसा निकाला। तो आई थिंक दैट रोल प्लेड अ वेरी बिग पार्ट इन दिस जियो फ़ोन्स। प्लस जब जियो लॉन्च हुआ था, एक तो कस्टमर की अवेयरनेस, जो जब कर लो दुनिया मुट्ठी में आया था, उस समय लोग को फ़ोन के बारे में, मोबाइल के बारे में पता भी नहीं था। तो लोगों ने खूब बहुत परचेज़ करा। आज के डेट में लोग को मोबाइल फ़ोन के बारे में पता है। क्या ऑप्शंस है उस प्राइस पॉइंट पे, क्या नहीं है, पीपल आर अवेयर अबाउट। नंबर 2, कोई आज की डेट में एक पर्टिकुलर नेटवर्क प्रोवाइडर के साथ में बंद करके नहीं रहना चाहता। बिकॉज़ जियो ने भी क्या करा है, शुरुआत में तो उन्होंने सारी चीज़ें फ्री कर रखी। स्लोली एंड स्टेडीली वो धीरे-धीरे करके हर एक चीज़ का चार्ज करना शुरू कर। what is the path for you to, you're going to do 350 crore this year, वो 350 का 3,500 crore का path क्या है? What all do you need to do to achieve it? Do you need to raise funds from investors, or do you need to build more sources of supply, or do you need to build more retailers in your channel? नो, व्हाट वी सी इज़ इन टर्म्स ऑफ सोर्सिंग, हमारा अगर मैं बात करूँ तो सोर्सिंग जो है दैट इज़ मोर और लेस व्हाट, बिकॉज़ सोर्सिंग के लिए जितनी सारी चीज़ें और जितनी सारी इनिशिएटिव्स ब्रांड्स एंड आवर पार्टनर्स आर टेकिंग, हम जो उनके साथ में डिस्कस करके जो कर रहे हैं, उससे सप्लाई फॉर द नेक्स्ट 3 टू 5 इयर्स आई वी सी नो प्रॉब्लम। चाहे वो ब्रांड हो या चाहे वो ऑनलाइन पार्टनर हो, सप्लाई इनफ होने वाला है। इन टर्म्स ऑफ सेलिंग आल्सो, जो हमारा चैनल है, आवर करंट चैनल हैज़ एपेटाइट टू कंज्यूम 1.5 लाख यूनिट्स अ मंथ, एंड वी हैव डन दिस आल्सो मल्टीपल टाइम्स। जब भी हमारे को दिवाली के टाइम पे या पीक सीज़न के टाइम पे जब हमारे को इन्वेंटरी सप्लाई इज़ इन लैक्स, तो हमने उसको सेम महीने में दैट सेम थिंग है वी हैव फॉलोड ड्यूरिंग दैट दोज़ मंथ्स आल्सो, कि जब हमारे को लाख यूनिट में इन्वेंटरी सप्लाई हुई, वी हैव लिक्विडेटेड दैट इन्वेंटरी इन द सेम मंथ। तो हमारा आज के डेट में चैनल का जो एपेटाइट है दैट इज़ मोर देन 1.5 लैक्स ईज़िली कंज्यूमेबल। जैसे-जैसे हमारा सप्लाई बढ़ रहा है, उसी तरीके से वी आर पेनिट्रेटिंग मोर टुवर्ड्स टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटीज़। जस्ट बिकॉज़ हमारा चैनल अब इतना ज़्यादा वास्ट होता जा रहा है और चैनल हमारा बढ़ता जा रहा है, दैट इज़ द रीज़न वी आर ट्राइंग टू ऑटोमेट एवरीथिंग, एंड वी आर सारी चीज़ों को हम प्रोसेस को बिल्कुल स्मूथ लाइन कर देना चाह रहे हैं, ताकि जब हमारा उस लेवल के वॉल्यूम पे पहुँचे, तो हमारे को वो ट्रांज़ैक्शन, इससे क्या होगा, ट्रांज़ैक्शन जो है दैट इज़ आल्सो रोटेशन विल आल्सो बिकम फास्टर। पहले अभी क्या होता था, क्योंकि वो पार्टनर को ऐप में जब दिखेगा उसकी शीट, उसको पता है मेरे साथ-साथ 10 लोग और दिख रहे हैं। तो मेरे को सबसे पहले बुक कर देना है, नहीं तो मेरा वाला लॉट जो है कोई और पार्टनर मेरा ना ले ले। Okay, okay. वो fear of missing out हाँ, create तो हो वो जाएगा उससे। थोड़ा-सा, हाँ, तो हमारे को वो पता है कि जो पार्टनर मेरा जिस चैनल में भेज रहा है वहाँ पे डिमांड है, ऐसे वो कमा रहे हैं, बट उनमें आपस में तो वो कॉम्पिटिशन एक कराना वो बहुत ज़रूरी है, सो दैट कि वो Yeah, भी ना उनको लगता रहे मेरे तो आराम से मेरे इतने पैसे आ रहे हैं, मैं तो इतना कमा रहा हूँ। दैट right. कॉम्पिटिशन करने के लिए कि उनमें भी वो एक आपस में एक वो कॉम्पिटिशन हुए। But yes, obviously to grow to get us to 3,500 or 4,000 or 5,000 crore type of figure. Obviously, sourcing or channel point of view से we are not concerned because we are the way we have been building our offline channel. हमने जिस तरीके से पिछले 6 महीने में करा है, the hard work जो initial days था, those were very difficult. आज के डेट में हमारे को कम से कम ऑफलाइन में that reputation and trust, Go deeper into beyond tier 1 and tier 2.
Yeah, deeper, and plus technology will also play a very major role in this. So that is the reason now the RQC का जो है वो problems of the device is being diagnosed by diagnostic app. जो हमारा sales का है that is completely automated. हमारा entire warehousing and everything is now completely automated because these all things will only get us to that volume and Right. to take care of. So hopefully in the next 3 years time, I think we should be clocking 1,000 CR for sure. Tell me something. Why is Cashify so focused on building its own supply? अगर supply इतना easily available है, because Initial Cashify ने जैसे initial वो fund celebrity endorsement वगैरह सारा कुछ किया just to build initial supply. because initial fundraising जो था, the initial rounds whatever they had raised, that initial fund rounds, so it was raised basis that only. Because उस Okay. टाइम पे क्या होता था कि चैनल इन्वेंटरी सप्लाई के लिए एक कोई फिक्स पर्टिकुलर सोर्स नहीं होता था, क्योंकि किसी ने भी सोचा नहीं, मतलब उस टाइम ऑब्वियसली दैट इंडस्ट्री वाज बहुत अनस्ट्रक्चर्ड था जिस समय कैशिफाई स्टार्टेड 10 years बैक। उस टाइम पे 10 पुराना years back. या Okay. उस टाइम पे हाँ, पुराने फोन का और रिफर्बिश्ड फोन का कि पुराना फोन हाँ, उस टाइम ट्रेड इन का कल्चर नहीं था. ट्रेड एंड ट्रेड, हाँ, तो अभी जो वो इन्होंने दैट टाइम वो टेक जो वो बना हुआ उस टाइम का है कि ठीक है ले करके हम आएंगे और हम उसको बना करके बेचेंगे। फिर जैसे जैसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो फंड्स भी जो वो उसी को दिखा करके दैट टेक थिंग ओनली गॉट देम रेज फंड्स, तो उस चीज को हम्म, बड़ा करना था। हम्म, अब right, आज right. की डेट में Okay. उनकी वो डिपेंडेंसी जो the है उस market मॉडल पे dynamics have ऑब्वियस changed. करेक्ट करेक्ट When they started, उस टाइम पे supply थी नहीं, so they had सप्लाई to थी build नहीं। supply. यस यस But आज के दिन supply like lying इमेंस with these यस हाँ हाँ। retailers basically. And all these retailers and the online partners, be it brands, be it online partners, they have become very aggressive in terms of supply. उनको वो दिख रहा है कि मतलब every time we go to them and we only discuss कि how to tap that 50% of the inventory which is lying in that unstructured. वह उसको किस Uh, तरीके से अपने पास लेकर because it drives their sales. If they are able yes to get obviously more people to given their old device, it means that people are upgrading to a new device basically. yes because उनकी forward sales जो है वो उस पे dependent है ना, उनका forward sales जो है वो बिल्कुल spike आ जाता है। Mm. Okay, one last question. So, tell me about your organization structure. How many people do you have? How do you manage the team and all that? So in total at Refit we have 32 people Wow, on roles. Yeah. So we 32 have a people बिल्कुल doing जो आप 300 crores. तो वही Amazing. बताया ना जो बिल्कुल दैट बिजनेस वाला माइंडसेट कि 1 रुपए खर्च करने के पहले पहले देखो कि आरओआई क्या है। Yeah, तो yeah. शुरुआत के 2 साल तो ऑब्वियसली मी एंड अवनीत ओनली हैव पूरा इंटायर सेल्स वाज मैनेज बाय मी एंड अवनीत ओनली। 2.5 पौने 3 साल तक हम लोगों ने पूरा मैनेज करा था। जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता गया वी स्टार्टेड बिल्डिंग टीम। आज के डेट में भी हमारे पास सेल्स में जो है वी जस्ट हैव 8 पीपल फॉर सेल्स, और बाकी के जो हमारा कोर जो है वो मैक्सिमम एम्प्लॉयज जो है दोस आर विद टीआरसी जो हमारे रिफर्बिशमेंट सेंटर है, वहां पे हमारे पास में Okay. वहां पे। लेकिन जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता है, जब हमारे पास इनफ्लोज जो पीक सीजन पे हम बीबीडी के टाइम पे हमारे को पता है वॉल्यूम ज्यादा होगा, हम उस टाइम पे आउटसोर्स कर लेते हैं। तो वी हैव द एजेंसी जहाँ से हम आउटसोर्स करके हम उस समय एडिशनल मैन पावर रख लेते हैं फॉर 2 months 3 months 4 months के लिए वेन एवर रिक्वायर्ड। बट ऐसे एज एन ऑर्गेनाइजेशन वी आर जस्ट 32 एज ऑफ नाउ। बट लेकिन वी डोंट हैव एनी प्लान्स कि मैं बहुत बड़ा टीम बना दूं और 150 Yeah, और well, 200 32 लोग को will hire never करूं। become 300 basically. यस यस यस, Uh, सो दैट इज द i- माइंडसेट कि जब तक so, यू आर नॉट what's the end goal? मतलब, do you want to take it all the way to IPO? या मतलब आपको करना क्या है? How will you make ऑब्वियसली wealth? अब मतलब, if you don't bring in investors, तो आपकी wealth कैसे बनेगी फिर? हाँ मतलब अभी तो हमारा 5 years का हमने अपना 5 years में दिस नंबर विल बी टारगेटिंग एंड वी शुड बी हियर बाय द नेक्स्ट 5 years एंड What is that number? डिपेंडिंग। So 5 years में हम we are targeting that we should be somewhere if everything goes well और वो सारा चीज अगर सही आ रहेगा तो we should be doing somewhere around 1500 to 200 CR। 5 साल में 1500 CR तक तो 1500 CR we should be। और दूसरा हमारा मतलब बेसिकली we get joy when we see any a rickshaw puller जो कि फीचर फ़ोन यूज़ करता था, और जब वो शहर में जब वो दुकानदार के पास या वो जब बताता है कि सर वो रिक्शा वाला लेकर के गया था, इट वाज़ वेरी हैप्पी, वो फ़ोटो खींचता है और वो जब उसको देखते हैं, देन वी थिंक दैट दैट गिव्स अस रियल जॉय कि हाँ, ठीक है यार, हम कम से कम उसको वो एक खुशी दे रहे हैं कि हाँ, ही कैन हैव कैप्चर दोज़ मेमोरीज़ जो वो आज के पहले वो नहीं कर सकता विद द सेम अमाउंट ऑफ मनी व्हाट ही वाज़ विलिंग टू स्पेंड।
जितना खर्च करके वो फीचर फोन, उतने में हमने उसको एक बेटर वैल्यू प्रोपोजिशन दे दिया, and he is satisfied. बाकी एज फार एज क्रिएटिंग आवर ओन वेल्थ इज कंसर्न, अभी हमारा तो वही है कि पहले एक बारी वहां तक पहुंचते हैं, एंड विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स। तो फर्स्ट आर वी टेक माइलस्टोन स्टेप बाय स्टेप, कि पहले इस साल का हमारा गोल इज टू clock minimum 350 to 375 CR. Next year we should be crossing 550, 600. And then so far, so hence and forth, by fifth year we should be somewhere around 1200, 1500 CR. And then once we reach there, then we'll see that, IPO should be the option, or, raising some funds. Would be the idea behind not raising funds is, what happens is sometimes investor का mindset जो है, it should match with your mindset. Because investor को क्या होता है, when investor comes, he only comes with the mindset of कि हाँ ठीक है, what is the exit for me? As co-founders, obviously we are also, if the other partner has, if the investor is showing trust on your business, it becomes our responsibility to give you a good exit. But at the same time, sometimes what happens is, once investors are on board, they make you do such things in which, you yourself know, because you have been running this show for the past 6-7 years, you know about this industry, that where and especially when you are making money, then तो all the more you know कि हाँ ठीक है, मेरे को पता है कि ये चीज करूंगा तो पैसा नहीं बनेगा, ये चीज करूंगा तो पैसा बनेगा। और इन्वेस्टर्स का एक फेयर बस खाली वही होता है कि वो आने के बाद में हमारे को कुछ ऐसी चीजें करने का प्रेशर ना हो, जहां पे डिस्पाइट नोइंग कि यहाँ पे ये चीज जो है इन फ्यूचर हमारे को रिटर्न नहीं देने वाला है, और हम वो चीज कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सम प्रेशर, द पर्सन सिटिंग ऑन ऑन योर हेड, कि ठीक है ये करना है। तो दैट वाज द थिंग Are you able to pay yourself? दिस फाइनेंशियल ईयर मार्च में, कि after 6 years of hard work, now we are drawing that much salary, on which we have left our, our respective अच्छा, jobs. अच्छा, हाँ, तो शॉपक्लूज की तो सैलरी अब आप मैच हाँ, कर रहे तो हो। अब हमने वो मैच करा है, तो हमारा Frugal. दिमाग में हमेशा वही रहता था कि हाँ ठीक है, वर्किंग कैपिटल में Reinvest डालो करो। इसको, मैं हाँ वर्किंग कैपिटल Right. में डालेंगे तो हम इसको महीने साल में 30 बार ही घुमाएंगे, इतना मार्जिन एडिशनल हम्म, बनाएंगे, वो भी वर्किंग कैपिटल में आएगा, हमारी नेटवर्क बढ़ेगी। तो दैट वाज द आइडिया। And that brings us to the end of this conversation. I want to ask you for a favor now. Did you like listening to this show? I'd love to hear your feedback about it. Do you have your own startup ideas? I'd love to hear them. Do you have questions for any of the guests that you heard about in this show? I'd love to get your questions and pass them on to the guests. Write to me at ad@thepodium.in. That's ad@thepodium.in.